करे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज उनको सुनना हमारे जी जी लिए। सर। थैंक यू पवन सर। यस सर। थैंक यू सो मच मयूर सर, थैंक्स अलॉट। तो दोस्तों, जैसे कल का सेशन मयूर सर का हुआ था और जो कुछ रह गया था, आज मयूर सर ने पूरा का पूरा पीपीटी के माध्यम से उसको पूरा कंप्लीट किया और काफी चीज उन्होंने काफी उसमें ऐड इन्फॉर्मेशन किया। तो थैंक यू सो मच मयूर सर। तो दोस्तों, जिस सेशन के लिए हम सभी लोग अटेंड हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन को मिलने वाला है, आप सभी को ऑलरेडी मालूम है। तो सर ऑलरेडी ब्लैक डायमंड रैंक पर हैं और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के साथ सर हमारे साथ कनेक्ट है। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्टेज न करते हुए आप सब लोगों की जोशीली तालियों के साथ मैं कॉल करता हूं हम सबके टेक्निकल गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, सपोर्टर, मेंटर मिस्टर आशीष बनखड़े सर। मोस्ट वेलकम आशीष बनखड़े सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन अभी मयूर जी ने दिया है। तो दोस्तों, इस मीटिंग की शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट अभी एलेक्स सर का एक ऑडियो आया है, उस ऑडियो के जरिए ही आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। हालांकि शुरुआत मयूर सर के द्वारा हो चुकी है, मगर अभी जो नेक्स्ट सेशन पार्ट 2 जो हम करने जा रहे हैं, वो पार्ट 2 शुरू करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि एलेक्स सर का जस्ट ऑडियो आया है, उसको पहले सुनते हैं। Yes. Good morning, everyone. Alex here. So we have just few days till the incredible start of Ultima farming, and of course of start of smart token, of smart coin, the Ultima token. And so far, guys, this will be just incredible time, and the biggest boom in the history of our market, guys. I think it will become bigger than all 7 years together. So be prepared, do your homework. These days, you have only one to do. You have to go out there and invite like crazy and prepare. Prepare for the biggest launch in the history of our projects. Guys, this will be absolutely incredible. Everyone is on fire. Everyone is just waiting and just hoping that starting as soon as possible. And this is in just few days the case, guys. The Ultima is coming. The Ultima and the Smart they are coming, and of course the incredible ecosystem with Ultima Card, with Ultima Exchange, crowdfunding, trading platform, freezing platform, guys. This is just absolutely unbelievable what we will deliver this year. So be prepared. And just one thing, you have to go there and invite everyone who you know. If you will not, then somebody else will do and invite your people in his team, because our world is very small, and everyone knows everyone. And don't forget, everyone, doesn't matter who it is, this person want to be at the first day by start. Everyone wants to be in the project from the beginning to get all the advantages, to all the profits, and all the best position was only possible. And guys, this time will become incredible. And so successful project like Ultima and Smartcoin, you will see, you will never meet before. That only in our company. And in the time where crypto market is just running in the crypto winter, we will fly. We will fly, and after you will see the product, how incredible it is, slowly but absolutely powerful, that focused on price growing, on long term, on big profit, and of course on $100,000 price in the next 3 to 5 years. Guys, if we will achieve $100,000 price in just 3 to 5 years, this will be incredible. And this time, the price growing will be only 5% plus minus a month, step by step, and then in all the community will see this and join. But this will happen automatically. But now you have the absolutely advantage, because the project is starting just in a few days. It means everyone who you invite will start by day zero. He has enough time to prepare, to enough time to invite the people and to build up front, because this advantage, want to have everyone to be in the project, not from the day one,
No, from day zero, and you have a much more advantages. So don't lose this time. Forget about the past. Forget about everything. Only one goal is to be prepared to the start, and that your people are prepared. And then we just rock like crazy. It will be absolutely unbelievable and amazing. So, guys, I wish you incredible days. Let's rock. Do your homework. Make your list. You have to call everyone. You have to meet everyone. You have to Zoom everyone, Skype everyone, because with the message that the biggest, the incredible, craziest project on this market is starting in a few days. They must be there. They must be in your team. They must be in our project. They can't miss this advantage because, guys, such products and platforms and technology like smart blockchain and cards and freezing platform, trading platform and exchanges, oh my God, they not starting every day. They starting one time in 5, 8 to 10 years. So guys, now or never, just do your job, go there and invite everyone you know, and then we just fly and rock entire market. तो दोस्तों, आपने देखा कि एलेक्स सर ने कितना अच्छा मैसेज आज जस्ट एक 5 मिनट पहले हमारे लिए छोड़ा है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते थे कि सर $1,00,000 पे रेट तो गया है, मगर उसके हमें लॉसेस भी खाने पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अंतिमा में $80,000 $90,000 से कॉइन को खरीदा था और उसके बाद में बहुत सारे लोग पैनिक भी हुए थे। मगर सर ने ये जो सारा अभी जो सिस्टम बनाया, इकोसिस्टम बनाया, एकदम सिस्टमेटिक वे से उसको बनाया और सर ने ये कहा है कि अगले 3 से 5 साल में हम इसको $1,00,000 तक लेके जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम 5% 10% से ग्रोथ करेंगे, यानी आने वाले 3 साल के बाद भी कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है तो वो भी बहुत बड़ा एक अर्निंग करके जाने वाला है। और साथ ही साथ ये स्मार्ट चेन पे जो अल्टीमा टोकन है, ट्रेडिंग है, एक्सचेंजेस है, फ्रीजिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी स्मार्ट चेन पे लॉन्च होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो संदेश था एलेक्स सर का, जिससे हमने आज का शुरुआत किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मयूर सर का भी यहाँ पे एक मैसेज आया है। सर प्लीज, आप कुछ बोलना चाहते हैं मयूर सर? हाँ, यस, वही एलेक्स सर के जो आपने कहा वही चीज मैं बताना चाहता था कि इन्होंने एक ऐसी चीज कही है कि मतलब कि जस्ट थिंक कि जो डे 0 से लोग रहेंगे वो कोई भी हो सकता है, वो आप, मैं या हम अगर ये अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं तो कोई दूसरा उसको ले लेगा। तो अल्टीमा एक्सचेंज, फ्रीजिंग, क्राउड फंडिंग, कार्ड, ये स्मार्ट और इसका यूटिलिटी तो स्टार्ट करने वाला है, लेकिन $1,00,000 जो 5% का जो प्लस माइनस का ग्रोथ है, प्राइस ग्रोथ का, ये भी मार्केट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालने वाला है कम्युनिटी इन करने के लिए। तो अपना होमवर्क खुद ने करना है, कॉल्स करने हैं, मीटिंग करना है और मार्केट रॉक करने के लिए सबने रेडी रहना है। तो ये बहुत ही अच्छा। और एलेक्स सर का, आशीष सर, मुझे एक बहुत चीज अच्छी लगती है कि उनका कितने भी थके रहे, कितना भी सिचुएशन कैसा भी रहे, उनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ऑसम रहता है। तो उस तरीके से वो हमें हर दिन गाइड करते, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की फीलिंग है। सो थैंक यू सो मच आशीष सर, यू प्लीज कंटिन्यू। यस, थैंक यू सर। देखा है आपने कि एलेक्स सर एक भी दिन चुकते नहीं है कि जिस दिन उनका मैसेज नहीं आया है दोस्तों, नहीं जाता है कि जिस दिन उनका मैसेज हम रीड नहीं करते या ऑडियो उनका नहीं सुनते। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसा सीईओ जो है हमें मिला है। दोस्तों, मैं एलेक्स सर को भगवान तो नहीं कहूंगा, क्योंकि भगवान कहने से सारे गुने माफ हो जाते हैं, मगर हाँ, यस, मैं उनको जरूर एक ऐसा सीईओ कहूंगा जो सीईओ मार्केट में हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है। प्रॉब्लम तो बिजनेस करने वालों को ही आते हैं, मगर उस प्रॉब्लम का हल, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके जो आता है, उसी का नाम एलेक्स रेनार्ड है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी लगभग 15-16 साल से बहुत सारे सिस्टम में वर्कआउट किया हूँ, मगर मैंने देखा हूँ लोगों का आज का सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम होगा, उनको सही सिस्टम नहीं मिलना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जब सही सिस्टम मिलता है तो उसमें टिके रहना, ये हमारे लीडर लोगों का काम है। मगर लीडर लोग जो है वो टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को देख नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि हमने यहाँ पे पैसे डाले हैं तो हमें पैसे डालने के बाद में हर महीना मिलना चाहिए। जैसे गाय को हम पालते हैं तो गाय ने दूध देना चाहिए,
हर दिन दूध देना चाहिए। मगर दोस्तों आपको जो सिस्टम है, जो सिस्टम का ड्राइवर जो है वो एलेक्स रेनार्ड है, वो ड्राइविंग कर रहे हैं, उनको पता है कहाँ ब्रेकर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो ब्रेकर को कैसे ब्रेकर के आगे से कैसे गाड़ी को लेके जाना है, वो सारी चीजें वो देखने वाले हैं। तो दुविधा उनको आती है, हमें तो खाली इतना ही पता होता है कि हमने ये किया तो हमें ये होना चाहिए। तो दोस्तों ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि जहां पे मनी डाल के पैसा लिया जाता है। ये एक आपका असेट जनरेशन का प्लान है। असेट जनरेशन का मायने क्या होता है? तो आप अपने असेट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप एक चीज को समझिए, आपने 1 लाख रुपए डालने के बाद में आपको 50-60 हजार रुपए महीना आएगा, ये इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये यदि कोई कंपनी का मालिक नहीं देता है तो आप कंपनी के मालिक को फोन करते हो कि सर हमारा 40,000 रुपए का ईएमआई नहीं है, 50,000 रुपए का ईएमआई नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान में होता है। मगर यह कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, यह एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लान है, जिसमें आपको ये समझना है कि हम यहाँ पे जो एक्स का मिंटिंग करते हैं या पीएलसी का मिंटिंग करते हैं, और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको बनता है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको आपका असेट 7 गुना, 6 गुना, 5 गुना बढ़ा के देता है। तो इससे क्या होता है, हम हमारे असेट को मल्टीप्लाई करते हैं, और उस असेट को मल्टीप्लाई होने के बाद हम देखते हैं कि हम बहुत बड़ा ह्यूज इनकम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों की जैसे हमने देखा, एक चीज को यहाँ पे नोटिस किया है कि मेन चीज यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे असेट जनरेशन क्या है। और बहुत सारे लोगों ने पीएलसी के भी फॉर्म लिए हैं, एक्स के भी लिए हैं, अल्टीमा के भी लिए हैं, क्लासिक के भी लिए हैं, मगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने प्रॉफिट को कैसे बुक करना है। जैसे बहुत सारे लोग अभी एक्स में हो गए, तो एक्स के लोगों को ये लग रहा है कि हमने अभी मयूर जी ने एक बात बोलते बोलते ये कही कि हमारा एक कॉइन अगर 100 रुपए का है तो हम क्यों उसको 80 रुपए में बेचे, हम क्यों उसको 90 रुपए में बेचे, क्यों ना हम उसको 100 रुपए में ही बेचे। मैं उनके आगे की बात ये बोल रहा हूँ कि आपको वो आपका असेट 100 रुपए से भी बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का अच्छा होल्डिंग करते हो, तो आप उस 100 रुपए की जो कीमत है आपके असेट की, वो 500, 600, 700 रुपए में भी बेच सकते हो, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी आपको आपके असेट को मल्टीप्लाई करा के देता है। आपके जनरेशन, आपको कॉइन का जनरेशन देता है। इससे क्या होता है कि आप अपने कॉइन को मल्टीप्लाई करते हो, और इनडायरेक्टली आपके कॉइन मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके असेट भी ग्रोथ होते हैं। तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि आप ना कि यहाँ पे पैसे रोटेट करने के लिए आए हो, तो आप यहाँ पे अपने पैसे बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए आए हो। तो आप यहाँ पे आपके असेट को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो असेट को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि अभी मयूर सर ने हमें बताया ऑलरेडी कि हमने क्या करना है। बहुत सारे लोगों का यक्स है, यक्स जिनके पास में है, तो अभी एक चांस क्या है कि वो खुद के जो असेट है उनको खत्म कर दे, वो खुद के असेट को खत्म कर दे और भविष्य के लिए कुछ भी ना रखे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने असेट को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बना के रखो, बढ़ा के रखो, और उससे क्या होगा कि आप जो है आपके असेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो आपके लोग हैं, उनके लिए आप बहुत बड़ा पैसा बना के रखोगे। तो इससे क्या होगा कि हम जब तक हमारे असेट को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, असेट को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो इनडायरेक्टली हमारे लिए पैसा भी मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो 100 रुपए की चीज अगर कोई बंदा 80 रुपए में बेचने के लिए तैयार है, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर 100 रुपए की चीज कोई बंदा अगर 500 में, 600 में, 700 में, 800 में, 1000 में बेचना चाह रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वेट करना चाहिए, और वो यदि वेट करेंगे तो निश्चित ही उनको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आपको असेट मल्टीप्लिकेशन करना है। वो कैसे होता है, असेट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसके बाद में स्मार्ट चेन के जरिए, स्मार्ट कॉइन के जरिए हम जो है कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं है कि स्मार्ट चेन का स्मार्ट कॉइन क्या है असल में। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ये बताना सर कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या, या जी मैं सर। कुछ चीजें जो है यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है क्या सर, क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर।
यस येस सर, क्लिअर दिख रहा है सर. एक मिनिट सिर्फ रोहन सर, सिक्युरिटी सेटिंग मध्ये जाऊन अनोटेबल शेअर कंटेंटला क्लिक करून ठेवा. शेअर व्हाईट बोर्डला वगैरे बाकीची सेटिंग मी इनेबल केलेली आहे, फक्त ती एक सेटिंग इनेबल करून टाका. ओके सर. ओके सर. हा, म्हणजे कोणी शेअर नाही करू शकत, अशी सरांशिवाय स्क्रीनवर कोणीच लिहू नाही शकत. ओके, काल केली ऑलरेडी सर मी सेटिंग. हे बघा आता इथे कोण आहे, हे पूजा पगारे, हे बघा रुपेश, प्रतीक, हा प्रतीक. सो येस, सो अनोटेबल शेअर कंटेंट आहे ना, त्याला आपल्याला डिसेबल करायचं आहे. ते होस्टला ऍक्सेस असेल तो. अक्षय, व्हेरी गुड. प्रतीक, पिंकी, सस्पेंड पार्टिसिपंट ऍक्टिव्हिटीज. ओके, यस सर, केलं मी ऑलरेडी. ओके. आशीष सर, अभी ट्राय करो प्लीज. अरे यार, जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनको रिमूव कर दो ना फटाफट. क्या टाइमिंग है उसमें? जिसका जिसका नाम आ रहा है, कोर्स जितने भी है ना, उनको खाली रिमूव करते चलो, काम बनेगा, कोई बात नहीं. यस सर. उनको रिमूव भी करो और कभी वापस अपनी मीटिंग में नहीं आना चाहिए, इसी हिसाब से ब्लॉक करो उनको. देखिए दोस्तों, आपको ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे चीजें ना करें. यहाँ पे जो भी स्पीकर है, जो भी आपको गाइड करने के लिए, आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए है. तो आज मैं मेरे लैपटॉप पे नहीं हूँ, नहीं तो ये एक्सेस तो किसी को लैपटॉप से वो सेटिंग होता है कि कोई भी आप में से कोई भी ऐसे कीड़े कांडी नहीं कर सकते. लेकिन जो जो यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं उनके डायमंड लीडर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अभी गौतम, तो डायमंड लीडर्स ये नाम आप नोट डाउन करें. आपके टीम में से कोई रहेगा तो उसको आपको बाद में अपने लैंग्वेज में समझाना है, या फिर वो जूम मीटिंग में ना आए तो ही बेहतर है. अश्विनी कुमार दास को अनम्यूट का रिक्वेस्ट दीजिए कोई प्लीज, तो वो थोड़ा सा गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल पे सिक्योरिटी में वो सेटिंग नहीं दिख रहा है जो लैपटॉप से हम लोग करते हैं. अश्विनी जी, अश्विनी कुमार दास जी, मैंने जी, आपको अनम्यूट उनको किया है. कोच बना दो, अश्विन जी को कोच बना दो, वो करा देंगे बराबर. सर, बनाया. जी सर. सर ये होस्ट ही कर सकते हैं सर इसको. हाँ वही ओनली होस्ट के पास ये ऑप्शन रहेगा. हाँ वही है, वो एक्सेस मुझे तो नहीं है रोहन ना. रोहन सर 1 सेकंड के लिए मेरे को होस्ट कर लीजिए, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, हाँ, फिर आपको वही. मैं होस्ट कर देता बिल्कुल. बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, गुड जॉब, बढ़िया. क्योंकि सिक्योरिटी में ऑप्शन आएगा. यस, हो गया. मतलब लोगों को इन चीजों में क्या इंटरेस्ट है ना, मतलब अभी भी शॉक में है लोग, सदमे में है. ये ना मानसिक रूप से बीमार लोग ही ये ऐसे करते हैं. क्या बोलते हैं ना सर, नीचे ये वाला ऑप्शन, नीचे में ये ऑप्शन में मैं यस वही, उसके नीचे भी एक ऑप्शन है, अनोटेबल टू शेयर वॉइस कंटेंट. सर हाँ, वो लास्ट वाला ऑप्शन देखिए. हाँ, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसको डिसेबल कर दीजिए. अभी हो गया सर, अभी ये कर सकते हैं सर. होस्ट जो करना था ना सर को ना, अभी सर को होस्ट करने से बेहतर आप ये करो ना, उनको कोच बना दो, कोई बात नहीं. फिर वापस नहीं तो जी फिर सर. मीटिंग कल के जैसे प्रॉब्लम हो सर जाएगा. अभी आप कर सकते हैं सर. अब आशीष सर आप अभी कर सकते हैं.
ओके जी सर, जी जी। यस सर, क्लियर है सर। देखिए फिर से आ गया है सर ये लॉरा। कि मीटिंग को ही क्लोज कर दो, कोई टेंशन नहीं। सर जूम डॉट आस में जाके जो होस्ट है जूम डॉट आस में जाके उसका सेटिंग चेंज कर दीजिए। यस सर, वही ट्राई कर रहा हूँ मैं। स्वप्निल, I don't have money. प्रतीक, अश्विन कुमार दास सर, आपको ही होस्ट बनाए और आप मुझे वो ये दिखाइए, आपका स्क्रीन दिखाइए। वो ऑप्शन पे शायद क्लिक नहीं हुआ है, इसके लिए ये दिक्कतें आ रही है। आपका स्क्रीन शेयर कीजिए एक बार प्लीज। सर जो लिख रहे हैं उनको कम से कम कोर्ट ने रिमूव तो भी कर लीजिए ना सर। हाँ अभी ओके। ऊपर क्या क्या ऑप्शन है? वो तीन हाइड प्रोफाइल पिक्चर इनवाइट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। शेयर कंटेंट ओके। अभी तो सब डिसेबल ही है, सिर्फ रीनेम का भी इनेबल होगा तो चलेगा। कोई बात नहीं। आशीष सर अभी ट्राई कीजिए एक बार प्लीज। देखिए सर फिर से हो रहा है। डियर फ्रैंक, एक सेकंड सर, उसको करते हैं। एक सेकंड आशीष सर, हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी मैडम जी। एकदम सिंपल आइडिया देती हूँ मैं आपको। मोबाइल फोन की स्क्रीन शेयर करिए, नोटपैड ऑन कर लीजिए, वहां कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस। ओके चलो सिंपल, हम एक काम करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन पा रहे हैं उनको ये स्क्रीन शेयर हो रहा है मैडम? यस सर। क्रिएट नोट क्लिक करना। यस दिस इज वेरी बेस्ट आइडिया। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच मैडम। मोस्ट वेलकम सर, प्लीज कंटिन्यू। तो दोस्तों जैसे ये हमारा स्मार्ट चेन है, जो स्मार्ट चेन सर ने लॉन्च किया है, तो बहुत सारे लोगों को जो है स्मार्ट चेन क्या है या स्मार्ट कॉइन क्या है और ये क्यों आया है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सही में जो है इसकी हालत कैसी रहेगी। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है सर तीसरे साल में 5वें साल में इतना बड़ा सप्लाई आएगा तो फिर कॉइन कहीं आधा ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सवालों के जो जवाब है वो सुनने के लिए हमें पहले ये स्मार्ट चेन क्या होता है, ये स्मार्ट चेन क्या होता है ये पहले समझना जरूरी है, और ये स्मार्ट कॉइन क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि हमारे पास में मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स हैं जो ऑलरेडी स्मार्ट चेन्स है। फॉर एग्जांपल कौन से स्मार्ट चेन्स है, तो हमने मार्केट में देखा है बीएनबी एक स्मार्ट चेन है, उसके बाद में इथेरियम एक स्मार्ट चेन है, मैटिक एक स्मार्ट चेन है, सोलाना एक स्मार्ट चेन है, ट्रॉन एक स्मार्ट चेन है। अब मार्केट में कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 23,000 क्रिप्टो करेंसीज है। आप समझिए 23,000 क्रिप्टो करेंसी, 23,000 क्रिप्टो करेंसी होने के बावजूद भी इतने ही कॉइन जो है वो स्मार्ट चेन पे क्यों है, बाकी क्यों नहीं है? तो बाकी भी है, जैसे IOTO आयोटा करके क्वाइन है। मैटिक ने भी क्या किया है, अभी मेटाफोर उसको सपोर्ट किया है। तो ऐसे बहुत सारे स्मार्ट चेन और इनके अलावा भी है 5 से 6, मगर वो क्या करते हैं, वो आपस में ही व्यवहार करते हैं। बहुत सारे स्मार्ट चेन का तो ट्रांजैक्शन फीस भी 0 है, वो आपस में ही ट्रांजैक्शन कराते। उसके मैं कुछ आपको क्लूज दूंगा।
फॉर एग्जांपल जो है मैं आपको उसके कुछ क्लूज दूंगा कि असल में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएनबी है, इथेरियम है, मैटिक है, सोलाना है, ये स्मार्ट चेन है। और ये स्मार्ट चेन कराते क्या है, ये 23,000 जो क्रिप्टो करेंसीज है इनके जो व्यवहार होते, अब इनके व्यवहार काय पे होते हैं, तो लगभग बहुत सारे लोग बोलते हैं 550 एक्सचेंजेस है उनमें इनके व्यवहार होते हैं। तो ये बात गलत है। ये 23,000 क्रिप्टो करेंसी के व्यवहार 23,000 क्रिप्टो करेंसी के व्यवहार जो है ये 500-550 एक्सचेंजेस में नहीं होते। इनमें से बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियां ऐसी है जो इन एक्सचेंजों पे लिस्टेड ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं है। इसका मायने क्या है, जब ये लिस्ट ही नहीं है, जब ये लिस्ट ही नहीं है तो मतलब सिंपल है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे या बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे या मैटिक की ब्लॉकचेन पे या सोलाना की ब्लॉकचेन पे या ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे ये लोग वर्कआउट कर रहे हैं। इसका मायने ये है कि जब ये जितने भी पीएनबी रहो या ट्रॉन रहो या मैटिक रहो या आपका सोलाना रहो या आपका इथेरियम रहो, तो ये सारे एक्सचेंजों पे इनका ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, मगर 550 एक्सचेंजों में से बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे भी हैं जहां पे 23,000 जो आपको क्रिप्टो करेंसी दिख रही है, ये 23,000 क्रिप्टो करेंसी बाजार में तो है मगर इस एक्सचेंज में नहीं है। फिर वो करती क्या है, तो वो अपना ट्रांजैक्शन इथेरियम के साथ बनाती है पेयर टू पेयर, वो अपना ट्रांजैक्शन बाइनेंस के साथ बनाती है पेयर टू पेयर। जैसे बहुत सारे आपने मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट देखे होंगे, वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे है, वो सारी चीजें इथेरियम से कराते हैं मगर एक्सचेंज पे लिस्ट ही नहीं थे। ऐसा क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह सिंपल है। इसके पीछे की वजह इतनी है कि वो सारा जो है वो सारा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कॉइन ऐसे होते हैं बाजार के, जो बाजार के कॉइन लिस्टेड नहीं होते हैं मगर ब्लॉकचेन पे होते हैं। तो मार्केट में जितने भी आपको 23,000 क्रिप्टो करेंसी दिख रही है, ये 23,000 क्रिप्टो करेंसी खाली नाम मात्र है, मगर हाँ वो सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी स्मार्ट चेन या बाकी जो ब्लॉकचेन है उनके द्वारा ही संचालित होती है। इनमें से एक भी क्रिप्टो करेंसी ऐसी नहीं जो ब्लॉकचेन से संचालित नहीं होती है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे नहीं हो सकती है, एक्सचेंज पे नहीं हो सकती है, मगर वो ब्लॉकचेन पे होना अनिवार्य है। अब ब्लॉकचेन पे होना अनिवार्य है, इस वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। इससे एक चीज बनती है कि जितने भी यहाँ पे ब्लॉकचेन्स है, स्मार्ट ब्लॉकचेन्स है, चाहे वो इथेरियम रहो, बीएनबी रहो, ट्रॉन रहो, ये एक ऐसा समझ लीजिए मैटिक है, ये एक टोल नाका है। ये टोल नाके से 23,000 जो क्रिप्टो करेंसी है, इनमें से बहुतांश क्रिप्टो करेंसी को इधर से गुजरना ही है। इसका मायने क्या है कि ये 23,000 क्रिप्टो करेंसी इधर से गुजरेगी तो ये जो ब्लॉकचेन है, यह ब्लॉकचेन टोल नाका वसूल करेगी, जिसको हम गैस फीस कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मन में सवाल आया कि सर हम पीएलसी स्वैप कर रहे हैं, हम क्लासिक स्वैप कर रहे हैं, हम अल्टीमा भी स्वैप कर रहे हैं, हम एक्स भी स्वैप कर रहे हैं, तो फिर स्मार्ट कॉइन बाजार में आएंगे कितने, और आने के बाद में वो तो पूरे खत्म हो जाएंगे। तो आपको ये भी समझना है कि वो बाजार में कितने आएंगे और क्या सही मायने में वो खत्म होंगे या नहीं होंगे, या बाजार में स्मार्ट चेन जितने भी है तो उनके स्मार्ट कॉइन क्या है। और एक दो बार जो मयूर सर ने भी हार्ड फोर्क करके एक नाम यूज किया है अल्टीमा टोकन को, तो वो भी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है सर आप बोल रहे हो कि स्मार्ट चेन है, स्मार्ट चेन है, स्मार्ट चेन है,
मगर सारा प्रोपोगंडा तो अल्टीमा टोकन का हो रहा है। तो स्मार्ट कॉइन को या स्मार्ट चेन को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा? स्मार्ट चेन पे अल्टीमा टोकन को क्यों प्रोपोगंडा के तौर पर उसको बढ़ाया जा रहा है, उसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है? तो दोस्तों देखिए, स्मार्ट चेन का, ये स्मार्ट कॉइन का, स्मार्ट चेन का अल्टीमा टोकन ये हार्ड फोर्क है। यानी क्या? यानी क्या है? जैसे इथेरियम है और दूसरा है ETC, इथेरियम क्लासिक, आपने सुना होगा। ये इथेरियम क्लासिक क्या है? ये एक टोकन है। तो इथेरियम का टोकन है, तो जितने भी इस टोकन पे ट्रांजैक्शन बनते हैं फीस इथेरियम को जाती है। तो ये इथेरियम का इनका खुद का प्रोजेक्ट है, इथेरियम का खुद का प्रोजेक्ट है ETC। उसी प्रकार से स्मार्ट चेन का खुद का प्रोजेक्ट है अल्टीमा टोकन। तो क्या फिर इथेरियम के ब्लॉकचेन पे खाली ETC वर्किंग कर रहा है क्या? नहीं, आपने शिबा इनू को भी सुना होगा। तो शिबा इनू कहां पे वर्क कर रहा है? इथेरियम पे ही कर रहा है। आपने बहुत सारे मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट भी सुने होंगे, वो कहां पे काम कर रहे हैं? इथेरियम पे। तो जितना प्रोजेक्ट इथेरियम के ब्लॉकचेन पे आता है, जितने प्रोजेक्ट इथेरियम के ब्लॉकचेन पे आता है, उससे क्या होता है? वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है इथेरियम को गैस बर्निंग में मदद करते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि हमने जो स्मार्ट चेन बनाया है, इसका पहला प्रोजेक्ट अल्टीमा टोकन है। तो अल्टीमा टोकन से क्या होगा? आपने ये देखा, अल्टीमा टोकन जो है वो BTC में कन्वर्ट होता है आने वाले समय में। वो BCH, अब ये BCH क्या है? ये बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन कैश है। आने वाले समय में ये USDT तो आपको अभी दिखेगा, ये 10 तारीख को, और USDC, उसके बाद में इथेरियम। तो ये अल्टीमा टोकन क्या होगा दोस्तों? ये कन्वर्ट होते जाएगा। तो जितना ज्यादा कन्वर्ट होते जाएंगे तो उतने ट्रांजैक्शन बनेंगे। जितने ज्यादा अल्टीमा टोकन को मार्ग होंगे उतने ज्यादा ट्रांजैक्शन बनेंगे। ट्रांजैक्शन एक नहीं बनेगा, समझिए, जितनी मल्टीपल पेयर दी है उतनी मल्टीपल पेयर से ट्रांजैक्शन बनेगा। तो जितना ट्रांजैक्शन बनेगा उतना स्मार्ट चेन को फायदा मिलेगा, स्मार्ट कॉइन को फायदा मिलेगा गैस बर्निंग के जरिए। दूसरा, आपने ये चीज भी देखा है कि स्मार्ट चेन ये कह रहा है कि अल्टीमा टोकन जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, खुद का प्रोजेक्ट है, जैसे इथेरियम पे ETC खुद का प्रोजेक्ट है, मगर शिबा इनू खुद का प्रोजेक्ट है क्या? नहीं, वो बाद में शेयर परचेस किए। मेटाफोर्स खुद के प्रोजेक्ट है क्या इथेरियम के? नहीं है, उनको खाली वो ब्लॉकचेन का सप्लाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से स्मार्ट चेन भी क्या करेगा? अल्टीमा जैसे हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वैसे मार्केट के लोग जो प्रोजेक्ट चलाएंगे उसको भी हम मदद करेंगे। उदाहरण के लिए मैं एक कंपनी बोलता हूँ, मेटाफोर जैसे ऑन पैसिव नाम की एक कंपनी है, उदाहरण बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि यही होगा। मगर ये ऑन पैसिव नाम की कंपनी है, उनका एक 25 लाख 26 लाख लोगों का नेटवर्क है, और ये ऑलरेडी लोग मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनका एक ओन डाटा है। तो स्मार्ट चेन क्या करेगा? इनको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेगा जो हमारे पास में है। तो डेबिट कार्ड प्रोवाइड करने से क्या होगा दोस्तों? ये डेबिट कार्ड पे ऑन पैसिव वाले खुद का लोगो लगाएंगे, जैसे अभी PLC का लोगो है, अल्टीमा का लोगो है, तो ये ऑन पैसिव वाले खुद का ऑन पैसिव जो भी उनको लोगो लगाना है वो लगा देंगे। वो सारा का सारा डाटा जो है इनडायरेक्टली लॉन्च पैड, जो मयूर सर ने आपको जब भी समझाया, वो लॉन्च पैड क्या है कि वो सारा का सारा जो डाटा है हमारे लॉन्च पैड पे लॉन्च होगा। तो हमारे लॉन्च पैड पे लॉन्च होगा इन द सेंस वो सारा का सारा डाटा हमारे पास में आएगा। वो सारा का सारा डाटा जो है वो काम करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा, वो फीस हमें देगा। तो ये उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में ना जाने कितने प्रोजेक्ट स्मार्ट चेन पे आएंगे, कितने तो भी प्रोजेक्ट। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, आप कॉइन मार्केट के आप सर्च कीजिए, 23,000 से अधिक क्रिप्टो करेंसीज है। तो क्या लगता है 5 साल
आप जब यहाँ पे एक्स के जरिए, क्लासिक के जरिए जब प्रॉफिट बनाते जाओगे, स्मार्ट कॉइन का जनरेशन करते जाओगे, तो आपके पास में क्या होगा, स्मार्ट कॉइन मल्टीप्लाई आएंगे, क्योंकि आप अपने एक एक्स को क्या कर रहे हो, 7x में कन्वर्ट कर रहे हो। तो एक एक्स आपको अगर 10 लाख कॉइन देता है तो 7x कितना देगा, 70 लाख कॉइन देंगे। अब ये कौन सा गणित बताया मैंने, क्योंकि 1x $1 लाख का है और स्मार्ट चेन जो है, स्मार्ट कॉइन $0.10 से मिलता है, तो एक एक्स में $0.10 के हिसाब से लगभग 10 लाख कॉइन मिलते हैं। तो जब ये 1x 7x हो जाता है तो 70 लाख स्मार्ट कॉइन आपके पास में आ जाते हैं। यदि आपने ये स्वैप नहीं किया, यक्स वाले लोगों ने स्वैप नहीं किया, तो आने वाले समय में उनको क्या करना पड़ेगा, $0.10 से उसको लेना पड़ेगा, $0.20 से लेना पड़ेगा, $0.08 से लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे ये चीज होगी कि आप लाइव रेट से उसको खरीद तो सकते हो मगर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी आज जो लोग यक्स को ले रहे हैं, जो लोग क्लासिक को ले रहे हैं, जो लोग पीएलसी को ले रहे हैं और स्मार्ट कॉइन में स्वैप कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा मौका है कि वह अपने असेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन द सेंस वो स्मार्ट कॉइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यक्स को मल्टीप्लाई करने का मायना है स्मार्ट कॉइन को मल्टीप्लाई करना। पीएलसी को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि स्मार्ट कॉइन को मल्टीप्लाई करना। क्लासिक को मल्टीप्लाई करने का मायना ये है कि आपने स्मार्ट कॉइन को मल्टीप्लाई किया है। तो आज यदि हम स्मार्ट कॉइन को लेते हैं, आज यदि हम स्मार्ट कॉइन को लेते हैं $0.10 से और बाजार में उसको हमने बेच दिया $0.12 से, $0.20 से, या हो सकता है होल्डिंग के वक्त आपको $0.08 आ गया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिसका पेयर USDT के साथ है उसका कम ज्यादा होना अनिवार्य है। अब जब मैंने ये बोला कि कम ज्यादा होना अनिवार्य है, तो आने वाले 3 साल तक तो जितने भी पीएलसी वाले हैं, क्लासिक वाले हैं, ये सारे लोग क्या करने वाले हैं, ये सारे लोग क्या करने वाले हैं, ये स्वैप करने वाले हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अभी ये पीएलसी अल्टीमा वाले हैं, पीएलसी यू क्लासिक वाले हैं, पीएलसी यू एक्स वाले हैं और पीएलसी वाले हैं। ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे लोग स्मार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ का है, किसी का 3 साल का है, किसी का 5 साल का है। अब आप मुझे बताएं कि यदि आपने मार्केट से स्मार्ट कॉइन बनाया तो आपने $0.10 से लिया और उसको बेचने की राह देख रहे हो, तो 5 साल के बाद आपको यदि बेचना है, 5 साल के बाद यदि आपको बेचना है तो आप खाली प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जो भी बढ़ेगा उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मगर आपने इसके जरिए स्वैपिंग करके रखते हो तो आपका 1x यहाँ पे 7x बनता है। इसका मायने कॉइन आपने एक अगर स्मार्ट कॉइन लेके रखा है तो इंटू 7, यानी आपने अपने स्मार्ट कॉइन को 7 टाइम्स बढ़ा लिया है विद इन 5 इयर्स। अब मुझे बताइए, जिन्होंने बिटकॉइन 2020 में 60 लाख रुपए से लिया था, 60 लाख रुपए से बिटकॉइन लिया था, अभी 2023 चल रहा है, 25 लाख पे बिटकॉइन। तो ये जो 3 साल गए हुए हैं, 21, 22, 23 और 24 और 25, ये 3 से 5 साल जिन्होंने बिटकॉइन लिया है उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। इसको एक तो होल्ड किया होगा या बेचा होगा। बेचा होगा तो स्वाभाविक है लॉस खाए होंगे, और होल्ड किया होगा तो होल्डिंग के वक्त जब ये 25 का 60 के ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी होल्डिंग पीरियड 3 से 5 साल का है, उसमें वो खाली होल्ड कर रहे हैं और मुद्दल पे आने की राह देख रहे हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमारा $1 लाख का एक्स है, 3 साल और 5 साल यदि हम रुकते हैं तो हमारा यहाँ पे 7x हो रहा है। इसका मतलब हमारे $1 लाख $7 लाख की प्रॉपर्टी बना के दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और ये अपने आप में बहुत प्रतिभाशाली एक चीज है कि आपको आपके असेट ग्रोथ करने का मौका मिल रहा है। अभी उसको बेचोगे क्या मिलेगा, एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के पास में एक्स है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास में क्या है असल में। अब देखिए 1x जिसके पास में बन रहा है या बनेगा, ठीक है, आज के डेट में उनके पास में
10 लाख स्मार्ट चेन आएंगे, स्मार्ट कॉइन आएंगे। और 12 महीने में जैसे ही उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो 7x होता है, तो 70 लाख आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी आने वाले समय में मल्टीप्लाई हो सकती है क्या? क्या सही में स्मार्ट कॉइन जो है या स्मार्ट चेन पे जितने भी गैस लिक्विडिटी कॉइन है, क्या वो मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में भी हमें थोड़ा समझना है। तो हम आइए हम उसको पहले समझ लेते हैं कि जो है उसको कैसे किया जाए। जस्ट मिनट। ओके, यस सर। देखिए दोस्तों, तो अभी हम गैस कॉइन की तरफ आते हैं कि मार्केट में जितने भी गैस कॉइन हैं उनका थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि उनकी पार्श्वभूमि क्या थी। तो मैं सर्च कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ सर्च कर सकते हो। हम देख रहे हैं कॉइन मार्केट कैप, ये सबके लिए खुला है दोस्तों। कॉइन मार्केट कैप हर कोई इसको चेक कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कॉइन मार्केट कैप में सबसे पहला जो कॉइन है, जो गैस लिक्विडिटी कॉइन है, वो इथेरियम है। यस सर। अब देखिए मार्केट में जैसे मैंने आपको कहा था 23,128 क्रिप्टो है। टोटल कितने कॉइन है? 23,128। और एक्सचेंजेस अगर देखा जाए तो 591 है। इसका मायने ये है दोस्तों कि ये 23,128 सारे के सारे कॉइन ये एक्सचेंजों पे लिस्टेड है क्या? तो नहीं। बहुत सारे ऐसे कॉइन है जो एक्सचेंज पे लिस्ट भी नहीं है मगर फिर भी चल रहे हैं। एक्सचेंज पे लिस्ट भी नहीं है मगर फिर भी चल रहे हैं। तो आपको यह समझना है कि वो क्रिप्टो अगर यहाँ पे आते हैं तो वो किसी ना किसी ब्लॉकचेन पे है, चाहे वो स्मार्ट चेन पे रहो या सिंपल ब्लॉकचेन पे रहो। तो जैसे हम इसके पहले स्मार्ट चेन पे नहीं थे मगर फिर भी हम बाजार में थे, हम एलटीसी का ब्लॉकचेन का कोड यूज करके हमारा खुद का ब्लॉकचेन था तो हम वहां पे थे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ऐसे भी कॉइन बाजार में है 23,128 में से जो सिंपल ब्लॉकचेन पे भी है और स्मार्ट चेन पे भी है। मगर जितना भी आप वहां पे ट्रांजैक्शन बनाते हो उसका जो गैस फीस है हमें स्मार्ट चेन को देना होता है। एक उदाहरण के लिए जैसे हमने अब ये इथेरियम को देखा है और अभी हम ऑल को देखते हैं। थोड़ा डाटा हम चेक कर लेते हैं कि असल में क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये $2.8 से इथेरियम लॉन्च हुआ है। तो 2.8 से यदि वो लॉन्च होता है तो आप ये भी देखिए, थोड़ी सी कल्पना ये भी करिए कि ये 2016 में हुआ था। 2016 के बाद में ये देखिए आप यहाँ पे लगभग 1300 समथिंग, यानी 2.8 का यदि हम करेंगे तो 1300 समथिंग यहाँ पे यूज हो रहा है। अभी हम इस चीज को देखते हैं कि 2.4 से ये लॉन्च हुआ। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस यस यस, 2.4 से ये लॉन्च हुआ था, यानी 211 यानी 211 रुपए से इथेरियम लॉन्च हुआ था। और विद इन 2 इयर्स वो 1030 पे गया, यानी 90,000। तो 90,000 पे वो गया, डिवाइडेड बाय हमने 246 किया, तो इसका मतलब 368 गुना वो खाली 2 साल में बढ़ा है। आप देखिए ये जो है वो 2016 और 2018 के बाद में फिर से एक बार पंप मिला है उसको 2022 में। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे 2022 का, तो आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है इसका। आप देख रहे हो कि ये 4 लाख के करीब करीब भी जा पहुंचा है। तो इसका मायने क्या है? जब ये 4 लाख रुपए पे गया है तो
यानी मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि ये 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, मगर हाँ ये जरूर मल्टीप्लाई होगा। क्यों? जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। अब मेन चीज क्या है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सर हमारे पास तो इतना डाटा है, इतना कॉइन है, इतना लिक्विडिटी कॉइन है, तो फिर हमारा रेट कैसे बढ़ेगा? तो बहुत सारे लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि आपके कॉइन मार्केट में कितने हैं वो मायने नहीं रखता कि आपका रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। गैस लिक्विडिटी कॉइन जो है उनके प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं जिसके जरिए ये गैस फीस कट रहा है वो ज्यादा मायने रखता है। तो आप ये देखिए, अगर यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर मैं इथेरियम का देखूंगा तो यहाँ पे देखिए 10,000 10,000 लक्ष 10 लक्ष कोटि 10 कोटि, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर्कुलेशन सप्लाई में आप देख रहे हो 12 करोड़, और इसका अगर आप सप्लाई देखोगे, अगर ओरिजिनल सप्लाई अगर आप देखोगे इसका तो अनलिमिटेड है, मगर सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर देखोगे तो 12 करोड़ के ऊपर दिख रहा है। तो उसके बावजूद भी इन्होंने 1600 टाइम्स मार्केट को रिटर्न्स दिए हैं विद इन 2 इयर्स, विद इन 3 इयर्स, विद इन 5-6 इयर्स। अभी हम दूसरे एक गैस लिक्विडिटी कॉइन को सर्च करते हैं जिसका नाम है BNB बाइनांस। ये हमारे इससे कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाइनांस एक पहला सिस्टम है जिस बाइनांस ने खुद का डेबिट कार्ड लॉन्च किया है अभी 6 महीने पहले, और एलेक्स रेनार्ड एक ऐसा शख्सियत है जिसने 2 साल पहले से मार्केट में डेबिट कार्ड लॉन्च करके रखा है। जब ये मार्केट में आए थे तो इनके पास डेबिट कार्ड नहीं था, ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, इनके पास में ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं था, और ना ही अभी है। मगर एलेक्स के पास शॉपिंग पोर्टल है, ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म पूरा रेडी है, डेबिट कार्ड है। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा BNB को भी सर्च करके कि इसकी हिस्ट्री क्या रही। तो देखिए दोस्तों, ये 0.11 से लॉन्च हुआ है, 0.11, और ये गया है लगभग यहाँ पे आप देख रहे हो $526। तो 0.11 से अगर हम करेंगे 0.11 तो लगभग 9 रुपए 68 पैसे से ये लॉन्च हुआ है, और 526 इंटू 88 करेंगे तो 40,000 समथिंग पे ये हाई गया था 2 साल में। तो डिवाइडेड बाय अगर हम 9 करेंगे तो 5,143 गुना ये भी मल्टीप्लाई हुआ है विद इन 2 इयर्स। दोस्तों आप देख रहे हो, तो क्या ये जब मार्केट में आए थे तो इनके पास में सारे प्रोजेक्ट थे? आपको अगर बाइनांस का एक हादसा पता होगा, जब ये 2018 को लॉन्च हुआ था तो 2019 में बहुत बड़ा सेटबैक बैठा था चैंपियन जाओ को। चैंपियन जाओ कौन है? बाइनांस के मालिक है। उनको 500 बिटकॉइन का पेमेंट लोगों को देना पड़ा था क्योंकि उनका एक्सचेंज हैक हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति के बावजूद भी बाइनांस ने इतने रिटर्न्स दिए हैं, इतने रिटर्न्स दिए। तो गैस कॉइन के साथ ये मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज जितने भी गैस लिक्विडिटी कॉइन है या ब्लॉकचेन स्मार्ट चेन है, उनपे नए नए प्रोजेक्ट जो है दिन ब दिन ऐड होते जा रहे हैं। और इसके बारे में भी अभी हम एक चीज देखेंगे, नोट करेंगे कि इनका भी सप्लाई अगर हम चेक करते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आता है। देखिए सप्लाई $15 करोड़ सर्कुलेशन सप्लाई है दोस्तों। सर्कुलेशन में 15 करोड़ है, उसके बावजूद भी इतने अच्छे रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं। उसके बाद में हम मैटिक तो मैं ऐसा कहूंगा कि जब लोगों ने कोरोना सुना तभी लोगों ने मैटिक सुना। कोरोना के काल में ही मैटिक का जन्म हुआ है। तो मैटिक को अगर हम सर्च करते हैं और मैटिक का थोड़ा सा डाटा अगर हम सर्च करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि ये 0.004 से ये लॉन्च हुआ है, 0.0044, और ये हाई अगर देखेंगे तो लगभग 2.1। तो 0.0044 0.0044 इंटू 88 करेंगे तो दोस्तों 0.38 यानी 38 पैसे से ये लॉन्च हुआ है, और 2.1 इंटू 88 करेंगे तो जस्ट मिनट 2.71 अगर करते हैं 2.71 इंटू 88 करते हैं तो 238 रुपए। 238 डिवाइडेड बाय अगर 0.38 करते हैं
सॉरी 38 करते तो 627 गुना। मैटिक कॉइन यह भी एक गैस लिक्विडिटी कॉइन है और यह कॉइन आप देख रहे हो कि 600 गुना बड़ा है। कितने साल में दोस्तों? विद इन 2 इयर्स। अब ये जो बताया जा रहा है आपको, यहाँ पे भी आप देखोगे, सर्च करोगे, इसका भी सप्लाई है। देखिए सप्लाई क्या है दोस्तों, 10,000, 10,000, लक्ष्य, 10 कोटि, 10 कोटि, 9,000 करोड़ दोस्तों, 9,000 करोड़ इसका सर्कुलेशन सप्लाई है। तो उसके तुलना में हमारा स्मार्ट चेन पे स्मार्ट कॉइन कितना है? और ये खाली जो ग्रोथ आप देख रहे हो, खाली 2 साल की ग्रोथ है दोस्तों। ये 2020 का कॉइन है। अभी तो मार्केट पैनिक में चल रहा है। एलेक्स सर कहते हैं कि ये क्रिप्टो विंटर चल रहा है। जैसे ही क्रिप्टो विंटर खत्म होगा तो ये कॉइन का क्या हो सकता है आप समझ लीजिए। ये ताकत है गैस लिक्विडिटी कॉइन की, स्मार्ट चेन की। ये ताकत स्मार्ट चेन की है दोस्तों। जितने भी स्मार्ट चेन है उनके पास में प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट काम करते हैं और वो गैस को क्रिएट करते हैं और उसके जरिए उसकी डिमांड क्रिएट होती है। तो आप ये समझिए कि मार्केट में अभी 23,128 क्रिप्टो करेंसी है। मैं कहता हूं 5 साल में ये लगभग 1 लाख क्रिप्टो करेंसीज हो जाएगी। तो क्या 1 लाख में से 1000, 1200, 1500 क्रिप्टो करेंसी क्या हमारे स्मार्ट चेन पे लिस्टेड नहीं होगी? क्या उनके ट्रांजेक्शन नहीं बनेंगे? ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है दोस्तों। अब हमने जब एलेक्स सर से ये सवाल पूछा था कि सर स्मार्ट चेन के बारे में आपका उत्तरदायित्व क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, तब सर ने ये कहा था, सर ने जवाब में ये कहा था कि मैं आने वाले जस्ट ये साल में यानी 2023 में ब्लॉकचेन के 10 इवेंट लेने जा रहा हूं। 10 इवेंट लेने जा रहा हूं। उन्होंने ये नहीं किया कि मैं अल्टीमा टोकन के इवेंट लेने जा रहा हूं। उन्होंने ब्लॉकचेन के कहा। अल्टीमा टोकन के तो अभी 27 तारीख को बर्लिन में हो रहा है, वो अलग है, और ब्लॉकचेन के जो होंगे वो अलग है। इसका मायने ये है दोस्तों कि हमें ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमने क्यों एक्स कॉइन को स्मार्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, हमने क्यों पीएलसी को स्मार्ट चेन में कन्वर्ट करना चाहिए, हमने क्यों। मैं ये सारी चीजें आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मार्केट में ऑलरेडी हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 साल में स्मार्ट चेन का रेट $0.10 से $2 होगा, $100 होगा, $1000 होगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्मार्ट चेन होने का फायदा क्या है, स्मार्ट चेन होने से क्या फायदा मिलता है। तो अभी स्मार्ट चेन होने के बावजूद भी अल्टीमा टोकन का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अल्टीमा टोकन के जरिए जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में आएंगे, जितनी भी देवान गिवान होंगी, जितने भी ट्रांजैक्शन बनेंगे, उसका सारा का सारा बेनिफिट जो है वो स्मार्ट चेन को मिलता है। तो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जो है आने वाले साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में और आने वाले 10 साल में, 15 साल में स्मार्ट चेन पे कितने ज्यादा प्रोजेक्ट बनेंगे, तब आपके साथ में स्मार्ट चेन नहीं रहेगा। मैं आपको बोलता हूं कि यदि कोई पीएलसी के कस्टमर होंगे, उन्होंने क्या करना चाहिए? 10 साल के लिए फार्मिंग अपना एक्टिवेट करना चाहिए। 10 साल के बाद भी चाहे रेट 10 साल के बाद में स्मार्ट चेन का, स्मार्ट कॉइन का कितना हो सकता है आप समझ लीजिए। उस वक्त भी आप पीएलसी के जरिए, स्वैपिंग के जरिए जनरेट करते रहोगे। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। क्या आपको बिटकॉइन की, इथेरियम की, क्लासिक की, एटीसी क्लासिक की, क्या आपको जो जनरेशन की अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी मिली है? दोस्तों हम एक बिटकॉइन 25 लाख में ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 60 लाख में 1 करोड़ में बेच सकते हैं। वो प्रॉफिट लेके हम बाहर निकल सकते हैं, मगर क्या बिटकॉइन जनरेशन की हमें फैसिलिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है? दोस्तों इथेरियम का मालिक है विटालिक बुटेरिन। विटालिक बुटेरिन ने लगभग 90%, जो 90% खुद का स्टॉक है वो खुद के पास रखा है। अगर वो चाहे तो मार्केट को अभी बर्बाद कर सकता है पूरे कॉइन को बेच के, मगर एक विश्वास है, क्योंकि आपको भी पता है कोविड काल में भारत को कोविड का जो फंड दिया था विटालिक बुटेरिन ने, वो 9,000 करोड़ था। वो किसके बेसिस पे दिया है दोस्तों? वो खाली स्मार्ट चेन के बेसिस पे दिया है। वो स्मार्ट चेन पे खाली एक प्रोजेक्ट रन हुआ था, शिबा इनू। तो शिबा इनू के जरिए उन्होंने 7,000 करोड़ भारत को डोनेशन दिया था दोस्तों, डोनेशन। तो आप समझिए इथेरियम के ब्लॉकचेन पे, स्मार्ट चेन पे जो एक प्रोजेक्ट आया शिबा इनू, उन्होंने करोड़ों अरबों के ट्रांजैक्शन किए, उसके भरोसे पे 7,000 करोड़ खाली डोनेशन दिया गया है। तो पैसा कितना बनाया हो गया आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम सबका चाहता एक कॉइन है ट्रॉन, उसको भी थोड़ा सर्च कर लेते हैं। ये भी एक गैस लिक्विडिटी कॉइन है।
तो हम देख रहे हैं कि ये गैस लिक्विडिटी कॉइन जो है कब लॉन्च हुआ है, देखिए ये कब लॉन्च हुआ है 2018 में, और पहले ही साल उसने हाइप किया है। उसके बाद में कोई भी गैस लिक्विडिटी कॉइन जहां से लॉन्च हुआ है वहां से वो वापस नहीं आया है, उन्होंने ग्रोथ ही दी। लगभग ये 0.0020 और ये लगभग अगर देखा जाए तो 0.021, इसका मतलब दोस्तों 110 110 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन दिया है विद इन 1 ईयर, उसके बाद में 50 टाइम्स। तो मैं ये सारी, अगर इसके सप्लाई की, बहुत सारे लोगों का कहना है सर सप्लाई इतना बड़ा सप्लाई हो जाएगा तो फिर स्मार्ट चेन का क्या हो जाएगा, सारे पीएलसी कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे एक्स कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे क्लासिक कन्वर्ट हो जाएंगे, तो सर कितना बड़ा सप्लाई रहेगा। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सप्लाई को देखिए, शतक, हजार, 10,000, लक्ष, 10 लक्ष, कोटि, 10 कोटि, ये क्या है दोस्तों, करोड़, 9,000 करोड़ से भी ऊपर सप्लाई है दोस्तों। मैं तो 9,000 करोड़ भी नहीं, शायद ये ज्यादा है, 91,000 करोड़, इतना अगर ट्रॉन है दोस्तों, और उसके बाद भी 100 टाइम्स से ग्रो करके दे रहा है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है स्मार्ट को। आज अगर आप खाली 2 साल के लिए, 3 साल के लिए सोच रहे होंगे तो समझ जाइए आप गलत कर रहे हो। स्मार्ट कॉइन को आप एज अ फ्यूचर, आपका करियर, मैं तो बोलता हूँ स्मार्ट चेन को आप 15 साल तक अगर खाली होल्ड करके रखोगे ना दोस्तों, तो थोड़ा बेच कर भी आप अपनी जिंदगी सेट कर सकते हो। ये स्मार्ट चेन का स्मार्ट कॉइन है। अभी अल्टीमा टोकन को प्रमोट इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, उसके पीछे की वजह ये है ताकि लोगों को समझ में आए अल्टीमा टोकन क्या है, जिससे ट्रांजैक्शन बनेंगे तो गैस बनेगी तो इनडायरेक्टली काम बनेगा। तो ये सारी जो मार्केट के गैस लिक्विडिटी कॉइन है दोस्तों, आपको ये भी समझना जरूरी है। अब और एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है दोस्तों, जैसे मैंने ये कहा था, ये देखिए यहाँ पे नैनो कॉइन है, ये भी जो है ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे वर्कआउट करता है। आपने देखा होगा कि इसको लॉन्च जो है XR भी नहीं किया था, और ये जो है एकदम माइन्यूट लेवल पे फीस देता है, एकदम कम फीस लेता है। यानी ये भी एक गैस लिक्विडिटी कॉइन है जो मार्केट में कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसको बना के दे रहे हैं, यानी उनको भी गैस बना के दे रहे हैं। उसके बाद में ये जो है, ये ऑलरेडी इंडिया का ही है, बैटल इन्फिनिटी, जिसको मदद कर रहा है ऑलरेडी मैटिक कॉइन, जो इंडिया से ही उसके कुछ 2-3 लोग ओनर हैं। और ये कार्डानो को भी आप जानते हो। कार्डानो का जो हेस्किंसन जो है दोस्तों, ये जो है चार्ली, ये विटालिक बुटेरिन का जो है ये दोस्त है। ये दोनों ने मिलकर पहले इथेरियम को स्टार्ट किया था, और बाद में इथेरियम का मालिक जो है वो उन्होंने मालिकाना हक छोड़ के इन्होंने कार्डानो लॉन्च किया है। तो ये भी जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके मार्केट में आ रहा है, और ये भी बहुत कम ट्रांजेक्शन फी दे रहा है। जैसे कि मैंने आयोटा जब भी आपको कहा था, ये एक ऐसा नेटवर्क है दोस्तों कि जो क्या कर रहा है, जितने भी फाउंडेशंस है या ऐसा बोल सकते हैं कि गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उनको फ्री में बोलता है, फ्री गैस फीस, हम कोई गैस फीस नहीं लेंगे, आप आइए। ये फ्री क्यों दे रहे हैं दोस्तों? ये फ्री इसलिए दे रहे हैं ताकि लोग आए। जैसे जियो ने अपना पॉलिसी किया था, पहले महीने डाटा फ्री, दूसरे महीने डाटा फ्री, तीसरे महीने डाटा फ्री, 9 महीने 9 दिन आपको डाटा फ्री दिया, और बाद में उनको पता चला कि अब डिलीवरी करने की बारी आ गई है, तो लोगों ने क्या किया दोस्तों, 555, 499, 399 के रिचार्ज मारे। उसी प्रकार से आयोटा क्या करने वाला है, लोगों को फ्री दे रहा है आज के डेट में ट्रांजैक्शन फी, और मगर जब लोग एडिक्ट हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी फीस लेना चालू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया इथेरियम क्लासिक, ये क्या है दोस्तों, ये हार्ड फोर्क है इथेरियम का। तो जैसे मैंने ये हार्ड फोर्क आपको कहा है दोस्तों, ये हार्ड फोर्क यानी क्या है, सिंपल उदाहरण आपको देता हूँ। हार्ड फोर्क यानी क्या, तो जैसे मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे जो है हार्ड फोर्क यानी क्या है, हार्ड फोर्क यानी क्या, तो जैसे इथेरियम है ETH, तो ETC ये एक हार्ड फोर्क है। उसी प्रकार से स्मार्ट कॉइन का स्मार्ट चेन है, उसका एक हार्ड फोर्क अल्टीमा टोकन है। तो जिस तरीके से इथेरियम ने खुद का प्रोजेक्ट ETC को लॉन्च किया है, उसी प्रकार से स्मार्ट चेन ने खुद का प्रोजेक्ट अल्टीमा को लॉन्च किया।
तो इथेरियम भी अनेक प्रोजेक्ट को, जैसे शिप को इन्होंने दिया है, मेटाफोर्स को दिया है, उसी प्रकार से स्मार्ट चेन भी अभी मल्टीपल कंपनियों को अपना असेस देगा या लॉन्च पैड देगा, जिससे बहुत सारी कंपनियां जो है यहाँ पे आएगी और स्मार्ट कॉइन को मदद करेगी या स्मार्ट चेन को बढ़ावा देगी इन द सेंस ऑफ गैस फीस। तो गैस फीस के जरिए क्या होगा दोस्तों? गैस फीस के जरिए ये होगा, गैस फीस के जरिए ये होगा कि स्मार्ट चेन को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसकी डिमांड बढ़ाने में हमें कामयाबी मिलेगी। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास में एक्स है, उन्होंने उनके एक्स को मल्टीप्लाई करना है। इसमें से जैसे ये सोचिए 4 5 6 7 7 बार ये आपका एक एक 7 में कन्वर्ट होता है। यदि आप अपने कॉइन को, आए हुए हर महीने के कॉइन को अगर बेचते जाओगे, इसको बेच दिया, इसको बेच दिया, इसको बेच दिया, इसको बेच दिएगा, तो क्या होगा दोस्तों? आप खुद के असेट को कमजोर कर रहे हो। आज बेचने के बाद क्या मिलेगा आपको? 40,000 हो सकता है, एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। एक पीएलसी यूएक्स 1,10,000 रुपए का जो भी फार्म है, उसमें 90,000 रुपए के कॉइन जब आप लोड करते हो तो लगभग आपको 40,000 रुपए के लगभग एक आधे को यक्स आते होंगे, एक उदाहरण बोल रहा हूँ। अगर वो 40,000 रुपए के यक्स उसको आ रहे हैं तो उसको ये समझना जरूरी है कि वो 40,000 रुपए के यक्स 40,000 रुपए के नहीं है, उसको ये लग रहा है कि 40,000 रुपए के, मगर ये आज बेचोगे तो 40,000 रुपए के, मगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में 5,000 स्मार्ट कॉइन आते हैं। ये 40 के स्मार्ट 5,000 आते हैं। तो ऐसे अगर 12 टुकड़े हैं आपके, ऐसे 12 टुकड़े हैं तो 12 पंचे 60, यानी कितना होगा? 60,000 कॉइन आएंगे। तो आप यह कल्पना करें कि आपने इनमें से अगर हर एक महीने को बेचते गए तो ये 60,000 में से कम होंगे। और ये जब स्मार्ट 60,000 आपके पास में है तो आने वाले समय में थोड़ा भी बेचकर आप इसमें से निकल जाते हो तो भी बहुत बड़ी बात। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि अपने असेट को विड्रॉल करने के लिए ये स्मार्ट चेन बनाया हुआ है। नहीं दोस्तों, असेट को विड्रॉल करने के लिए आप ये गैस कॉइन बनाया है, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि यदि आप गैस कॉइन को, स्मार्ट गैस कॉइन को यदि आप बना के रखते हो तो ये आने वाला फ्यूचर भी आपका बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है। एलेक्स सर ने ये कहा है कि इसके बाद में कोई कॉइन नहीं होगा। इसका मायने क्या है? इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ये पूरा हो चुका है ऑलरेडी स्मार्ट चेन से। इसके बाद में कोई कॉइन नहीं आएगा, उसके बाद में खाली कॉइन आएंगे, वो खाली लिस्ट होंगे, यहाँ पे लिस्ट होंगे, कॉइन नहीं आएंगे, खुद के कॉइन नहीं आएंगे, अल्टीमा टोकन के अलावा कोई कॉइन नहीं आएंगे, मगर जितने भी मार्केट के कॉइन आएंगे वो स्मार्ट चेन पे वर्किंग करेंगे। और जैसे ये स्मार्ट चेन वर्किंग कर रहा है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो जैसे यहाँ पे कोई मेटाफोर्स का एक आध प्रोजेक्ट आ गया, यहाँ पे कोई ऑन पैसिव नाम का कंपनी है, यहाँ पे कोई डेबिट कार्ड का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई और कोई कंपनी कर, तो ऐसे जो हमारे स्मार्ट चेन पे जो है नंबर ऑफ कंपनी जो है रजिस्टर्ड होंगी और रजिस्टर्ड होने के बाद वो स्मार्ट चेन के जरिए पैसा बनाएंगी। तो स्मार्ट चेन कितना परमानेंट सॉल्यूशन है ये लोगों को आज समझ में नहीं आएगा, मगर 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद जब मार्केट में इसके हजारों प्रोजेक्ट रहेंगे, आप कल्पना करें दोस्तों कि 91,000 करोड़ ट्रॉन होने के बावजूद भी मार्केट को उसने 108 गुना असेट दिया है बना के। 9,000 करोड़ मैटिक होने के बावजूद भी 600 गुना उन्होंने असेट को मल्टीप्लाई किया है। मायने ये नहीं रखता कि ये 2 साल में गए, 3 साल में गए। मैं नहीं कहूंगा कि 2 साल में या 1 साल में स्मार्ट चेन बढ़ेगा या स्मार्ट कॉइन बढ़ेगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, जिनको ऐसा लगता है कि 3 साल के बाद में विड्रॉल करना है तो विड्रॉल करिए, या 1 साल
2 साल 3 साल, जैसे 3 साल में हमें मिल रहा है, 3 साल के बाद नहीं मिल रहा है आपको, 3 साल में मिल रहा है, तो 3 साल में भी आप 1%, 2% और 97% के जरिए विड्रॉ कर सकते हो। मगर हाँ, सजेशन यही रहेगा कि ये एक ऐसी चीज है, अगर आप संभाल के रखते हो तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ी को काम करने की नौबत नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज का यह जो प्रेजेंटेशन था, जो स्मार्ट के जरिए मुझे चीजें आपको समझानी थी कि असल में यक्स को चिल्लर के भाव में बेच रहे हैं, चिल्लर के भाव में। बहुत बुरा लगता है दोस्तों कि लोग जब इसको चिल्लर के भाव से बेच रहे हैं, इसकी अहमियत जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ते जाएंगे, तो गैस फीस भी बढ़ती जाएगी, और आने वाले जितने भी कॉइन हैं उनको स्मार्ट चेन के अलावा कोई पर्याय नहीं है। कल्पना यह करे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यह कल्पना करे कि उदाहरण के लिए अभी एलटीसी का ब्लॉकचेन होने के बावजूद भी, पीएलसी रहो या अल्टीमा रहो या क्लासिक रहो, ये सारे एलटीसी के प्रोजेक्ट थे। एलटीसी यानी लाइट कॉइन बेस्ड प्रोजेक्ट। ये सारे प्रोजेक्ट एलटीसी के होने के बावजूद भी स्मार्ट चेन की आवश्यकता क्यों गिरी? कोई तो वजह होगी। तो क्या है दोस्तों, जैसे V9 हुआ है तो V11 आता है, V11 आया तो V13 आता है, सही है ना? उसी प्रकार से एलटीसी से बहुत सारे अवरोध हमें हो रहे थे, बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट हम खड़ा कर नहीं रहे थे। इस वजह से बहुत सारे लोगों का कहना यही था, सर ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म, डेबिट कार्ड, ये तो खाली बातों नहीं हो रही है, ये तो मार्केट में रन ही नहीं हो रहे, तो इसका क्या काम? तो दोस्तों, ये सारे का सॉल्यूशन एक ही है, स्मार्ट चेन। स्मार्ट चेन एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन है कि यदि आप सारे प्रोजेक्ट चलाना चाहते हो तो स्मार्ट चेन के जरिए ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में सारा जो टेक्नोलॉजी है ये अपडेट हुआ है। हाइब्रिड ब्लॉकचेन लेके, क्योंकि दोस्तों अभी तक जितने भी हमारे ब्लॉकचेन से रिलेटेड काम थे वो POW से चलते थे, और अभी हम POS के साथ भी उतरेंगे 10 अप्रैल को या तो 7 अप्रैल को, जो भी डेट होगा वो आपको बताया जाएगा। 7 तारीख को तो है फार्मिंग लॉन्चिंग है, 10 तारीख को कॉइन का लॉन्चिंग है। मगर ये प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क क्या है दोस्तों? ये ऐसा टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इथेरियम, आपको शायद पता होगा, इथेरियम 2015 को लॉन्च हुआ था और खाली POW पे काम कर रहा था, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा था। मगर अभी 2022 में, यानी उसको 7 साल लगे हैं दोस्तों प्रूफ ऑफ स्टेक पर आने के लिए, और आज हमें गर्व है कि हम भी प्रूफ ऑफ स्टेक पर 7 या 10 तारीख को आने वाले हैं। आज नहीं है, मगर 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद हम यहाँ पे लॉन्च होने जा रहे हैं। तो इसकी ताकत क्या है दोस्तों? आप थोड़ा सा बाइनांस में जाके प्रूफ ऑफ स्टेक देखिए, आप इथेरियम में जाके प्रूफ ऑफ स्टेक देखिए, तो आपको फर्क समझ में आएगा कि हमारे आज के कॉम्पिटिटर जो है वो अच्छे ब्रांड है, मगर अच्छे ब्रांड लोगों के पास ना डेबिट कार्ड है। जितने भी मार्केट के जितने भी गैस लिक्विडिटी कॉइन है, जो गैस को जनरेट करते हैं, जो स्मार्ट चेन रखते हैं, उनके पास ना डेबिट कार्ड है, ना ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म है, ना उनके पास में ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, ना उनके पास में एक्सचेंजेस है। अब एक्सचेंजेस के बारे में अगर देखा जाए तो बाइनांस के बाद खुद का एक्सचेंज है दोस्तों, मगर उसके अलावा क्या मैटिक के पास है? नहीं है। क्या ट्रॉन के पास है? नहीं है। उसके बाद बहुत बड़ी एक बात आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे एक्सचेंज में अल्टीमेक्स जो है, अभी आपको ऑडियो सुनाया था मैंने, अल्टीमेक्स भी लॉन्च हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने ट्रस्ट वॉलेट का नाम सुना होगा। ट्रस्ट वॉलेट क्या है दोस्तों? ये बाइनांस का वॉलेट है, जिसमें आप बिटकॉइन से लेके इथेरियम से लेके सारी चीजें रख सकते हो। तो हमने चेंज क्या किया दोस्तों, इसके पहले हमारे पास PLC का वॉलेट हुआ करता था, PLC UC का हुआ करता था, अल्टीमा का हुआ करता था, और PLC
एक्स का भी हुआ करता था, और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट LTC बेस्ड थे, लाइट कॉइन बेस्ड थे। मगर दोस्तों बताने में गर्व महसूस हो रहा है कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट अभी जो है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट स्मार्ट चेन पे लॉन्च होने जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जैसे बाइनांस का ट्रस्ट वॉलेट होगा, वैसे हमारा स्मार्ट वॉलेट होगा। जी स्मार्ट वॉलेट में आप BTC भी रख सकते हो, इथेरियम भी रख सकते हो, और अन्य कॉइन भी रख सकते हो। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन का यूनिट रहेगा, जिससे सारी दुनिया स्मार्ट वॉलेट पे आएगी और दुनिया जानेगी कि जैसे हम लोग अभी जिस किसी के पास में कल मेरे टीम से सचिन जगतकर जी है, उनका $0.8 ट्रांजैक्शन फीस अटक गया था। यानी उन्होंने डॉलर डाले मगर इतने कम डाले, इतने डॉलर कम डाले। तो क्या हुआ दोस्तों, इतने डॉलर कम डालने की वजह से क्या हुआ, इतने डॉलर कम डालने की वजह से बात ये हुई दोस्तों कि उन्होंने क्या किया, $0.8 कम हुआ तो सर बोले मैं बाइनांस में जाता हूँ, तो बोल रहे कम से कम $10 डालना है। मैं कॉइन्सबिट में जाता हूँ तो वो बोल रहे कम से कम $5 डालो, और डालने के लिए भी $2.5 फीस दो। तो वो क्या करे, वो ट्रस्ट वॉलेट बोले सर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है क्या? तो मैंने कहा नहीं, मगर मेरे दोस्त के पास है। तो मैंने मेरे टीम से सुरेश जी थे, सुरेश जी को फोन लगाया। सुरेश जी ने क्या किया दोस्तों, सुरेश जी ट्रस्ट वॉलेट पे गए और ट्रस्ट वॉलेट से $1 को सेंड किया, 0 ट्रांजैक्शन फी। उससे क्या हुआ, ट्रांजैक्शन भी बना और काम भी बना। नहीं तो $1 को भेजने के लिए यहाँ पे $10 खर्चा करने की नौबत आ रही थी। तो ऐसी चीज जो है आने वाले समय में हमारा खुद का स्मार्ट वॉलेट भी रहने वाला है। तो आप समझ लीजिए दोस्तों, आने वाला हमारा कल कैसे रहेगा। तो मैं आप सभी लोगों को इतना ही कहूंगा कि ये सारी चीजें जो है दोस्तों आपको समझना है, और आप अगर समझ लेंगे तो ही आप इसमें क्रांति कर सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट अभी एलेक्स सर ने हमारे लिए बनाया है दोस्तों, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो प्रोजेक्ट अभी मार्केट में हमारे सिवा बाजार में मार्केट में कोई भी नहीं है। क्यों बोल रहा हूं कोई भी नहीं है, क्योंकि मार्केट की सारी जितनी भी दीर्घ कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्रिप्टो विंटर के कारण बंद हो चुकी है दोस्तों। आपने सेंट्रल बैंक का भी देखा होगा, अमेरिकन बैंक, वो भी बंद हो चुकी है। क्रिप्टो विंटर के कारण FTX भी है, वो जो है वो माइनस में चला गया है, लूना माइनस में चला गया है। मगर हम ही मार्केट में ऐसे लोग हैं जो इतना पैनिक कंडीशन होने के बावजूद भी असेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यह असेट मल्टीप्लिकेशन आपको खाली 7 दिन मिलेगा। बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि ये खाली 7 दिन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये खाली 7 दिन की अपॉर्चुनिटी है। 7 दिन में आपको करना क्या है, आपके पास में यदि फार्म नहीं है तो फार्म के साइज को बढ़ाना है। यानी आपके पास यक्स होंगे तो यक्स के जरिए आप फार्म लोड खरीद सकते हो, और उस फार्म में जो भी साइज मिलेगा, 0.1 मिलेगा, 1.2 मिलेगा, 1.2 मिलेगा या 0.2 मिलेगा, ये यक्स 7x का 49x भी बना सकते हो। तो आपको सोचना है कि आपके 1x को अभी बेचना है कि 49x में कन्वर्ट करना है। डिसीजन इज योर, सजेशन इज माय। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपका आभारी हूँ, ऋणी हूँ। और अभी जाते हैं होस्ट के पास और सुनते हैं उनकी बातें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, जैसे आशीष सर ने कितना सारा चीज कंपेयर करके दिखाया कि मार्केट क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है और एक्सचेंजर क्या है, कॉइन क्या है, सारा का सारा सर ने पूरा अपना व्यू रखा। अब सर का व्यू और हमारा व्यू, उसमें सब हमको सोचना है, समझना है, उसके बाद हमको डिसीजन लेना है। सर ने पूरा इंफॉर्मेशन सारा जो सर ने जहां जहां से पूरा लाइव भी हमको दिखाया। तो पूरा कम्युनिटी कोर्स से मिस्टर आशीष बनखड़े सर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही साथ दोस्तों समय भी हो गया है और हमारे साथ में हम सबके मेंटर सपोर्टर मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय सर भी दुबई से हमारे साथ कनेक्ट हैं। पुरुषोत्तम पंचाल जी, आप हैंड रेज न करें सर, आपकी जो भी कोई क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आप अपने सीनियर लीडर तक पहुंचाएं, वो आपको समाधान दे देंगे टेक्निकल एक्सपर्ट के माध्यम से। तो हमारे बीच में हम सबके मेंटर मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय सर भी हैं। तो आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में सर को मैं इनवाइट करता हूं। मोस्ट वेलकम मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय सर। उसके बाद हम सेशन को क्लोज करते हैं। सर, थैंक यू सर। सबके लिए सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग करूंगा, और जो भी आज का सेक्शन हुआ है या रात का भी सेक्शन हुआ जैसा मयूर सर ने लिया था फर्स्ट पार्ट, वो भी बहुत अच्छा रहा। कुछ टेक्निकल कारण हमारा रात का मीटिंग थोड़ा सा क्लोज हुआ, लेकिन सेकंड पार्ट था हमारा मिस्टर अपने ब्लैक डायमंड आशीष सर का। तो उन्होंने भी बोले रात नहीं लेकिन दिन सही, तो दिन में उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया। पर मेरे हिसाब से अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं। जिसके भी अगर आशीष सर ने जिस हिसाब से, मयूर सर ने जिस हिसाब से अगर इस सिस्टम को समझाया और फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ऐसा मैं डायरेक्ट बोल दूंगा। क्योंकि उनके लिए बहुत समय देना पड़ेगा, कम से कम 5-10 साल सिस्टम समझाने के लिए मार्केट में देना पड़ेगा। जैसा छोटा सा बच्चा सीखने के लिए उसको 10-15 साल 20 साल देना पड़ता है, उसी तरह जिनको अगर ये सिस्टम समझ में नहीं आया अभी भी, रात को लेके अभी आज का सेक्शन सुनने के बाद भी, तो उनके लिए ये सेक्शन या ये प्लेटफॉर्म है नहीं। तो खुद अपना जो भी खुद का काम करते हैं वही काम उनके लिए अच्छा रहेगा, उन्होंने ये सिस्टम में देखना भी नहीं। ये मेरा राय रहेगा, सब लोगों के लिए अच्छा राय रहेगा। उसमें से कुछ छोटे छोटे चीजें जो बची है मैं उनको आपको क्लियर करूंगा, और हम आज का सेक्शन जो भी है बहुत बढ़िया हो रहा है और बहुत बढ़िया बुक करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला, जैसा मयूर सर ने जो भी आपको टेक्निकल चीजें बताई, प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, जो भी चीजें कैसे कैसे अपना वर्किंग होने वाला उसके बारे में बताया। ये हमारा एक प्रोजेक्ट था जो उन्होंने बताया। सेकंड पार्ट था जो आपने आशीष सर ने जो बताया, वो अपने सेकंड पार्ट था जैसा हमारा आने वाला समय जो स्मार्ट ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉइन कैसे वर्किंग करेगा। तो पहले मैं आपको लोगों को यही बोलूंगा, ये 2 प्रोजेक्ट अलग है, ध्यान रखना। भले कंपनी अपनी एक ही है, मिस्टर अलेक्स सर एक ही है, लीडर्स एक ही है, वही लीडर्स हमारा काम कर रही है, लोग भी वही है, वही काम करे। लेकिन पहली बात तो यह है कि हमारे दोनों प्लेटफॉर्म एक साथ बताया जा रहा है, इसके वजह से लोग कंफ्यूजन होने के लिए मैं ये बात क्लियर करूंगा, हमारे 2 काम एक साथ काम कर रहे हैं, ये चीज को समझना है। यानी हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉइन ये अलग पार्ट है, और हमारा नया अल्टीमा टोकन और अल्टीमा फार्मिंग ये अलग पार्ट है। ये 2 प्रोजेक्ट एट अ टाइम अभी हम मार्केट में लेके जा रहे हैं। तो ये चीज को कंफ्यूजन नहीं करना किसी को भी, पहला पार्ट ये समझना है। क्योंकि हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉइन वो 2 काम के लिए काम कर रहा है, एक फ्यूचर के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारा 7 साल से जितना भी मार्केट में पेंडिंग काम है उसको मार्केट से हटाने के लिए। ये 2 काम वो कर रहा है, यानी स्मार्ट कॉइन और स्मार्ट ब्लॉकचेन। फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, जो पूरी दुनिया का नंबर 1 का प्लेटफॉर्म हमारा रहेगा, उस हिसाब से कंपनी उसको डिजाइन किया हुआ है। लेकिन उसके कारण हमारे जितने भी प्रॉब्लम है पीछे वाले, जैसा प्लैटिन कॉइन का क्यों ना हो, क्लासिक का क्यों ना हो, या अपना अल्टीमा कॉइन क्यों ना हो, या उसके साथ अगर बात करेंगे तो हमारा EX कॉइन क्यों ना हो, तो सबका जो पेंडिंग पार्ट चल रहा है, जैसा विड्रॉल या पैसे हमको रिटर्न कैसे लेना, उसका सबका एक ही कारण कंपनी बना दिया है अभी, वो है अपना स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ स्मार्ट कॉइन। इस चीज को आपको समझना है। तो वो पार्ट है सिर्फ वो लोगों के लिए जो पुराने लोग हैं, जिसके लिए पेंडिंग चल रहा है, हमारा विड्रॉल की बातें चल रही है, उनके लिए स्पेशली। और वो हमारी कंपनी के ओनर मिस्टर अलेक्स सर का काम है कि बहुत बड़ा उनका बड़प्पन है का हमारे पूरे कम्युनिटी को, हमारे पूरे लोगों को इस सिस्टम के बाहर निकाल रही है। पहले इस सिस्टम को आपको समझना है, क्योंकि कंपनी की तरफ से, लीडर की तरफ से, मिस्टर अलेक्स सर की तरफ से जो भी देना था वो सब चीजें ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। कंपनी के पास, लीडर के पास, मिस्टर अलेक्स सर के पास हम छोटा सा भी क्यूरी नहीं बोल सकते, तो उनकी तरफ से हमारा कुछ काम पेंडिंग है। ये चीज पहले आपने को सबको क्लियर करना है, और यही हमको लोगों को समझा देना है। क्योंकि कंपनी की तरफ से जैसे अगर बात करें, हमारा फार्मिंग पार्ट था वो लोगों को दे चुकी है। फार्मिंग पार्ट एक हमारा टेक्नोलॉजी था, उसके माध्यम से कॉइन मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ऑलरेडी लोगों का आज भी हो रहा है, और जो भी लोगों का कुछ हुआ भी है। तो ये चीज को समझना है, या आने वाले दिन में होने वाला है। तो वो कंपनी का पार्ट था, मिस्टर अलेक्स सर का पार्ट था, और लीडर लोगों को उसको प्रमोट करने के लिए उनके पास वो फार्मिंग लोगों के पास जो भी हमारा फार्मिंग है वो हम लोगों के पास लेके गए थे। तो ये जो पार्ट था वो हमारी कम्युनिटी या हमारा जो सिस्टम है उनके हिसाब से 100% कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं, या किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं कर रहे। लेकिन उसके आगे का जो पार्ट था वो मार्केट का था, जो मार्केट में लोगों ने पेशेंस नहीं रखा या पेशेंस रखना नहीं चाहते, उसके वजह से उसको
रिवर्स आने की वजह से या उसका वैल्यू कम होने की वजह से हम उसको कैश नहीं कर पा रहे हैं। इतना एक छोटा सा पार्ट है हमारे लिए, वो छोटा सा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा मार्केट है, हम उसको गिन नहीं सकते, इतना बड़ा मार्केट है। तो हमारा जो भी अगर पूरी मार्केट की बात करेंगे, अभी जैसे एलेक्स सर ने उसी दिन बताया कि हमारा पूरा अगर मार्केट की बात करेंगे, लास्ट ईयर की बात करते, लगभग जिसने फार्म बेचे या फार्म लिया वो कैलकुलेशन, और हमने जो कॉइन में मार्केट में लेन देन किया, भले मार्केट में किया हमने एक दूसरे के साथ, उसका सबका अगर एक साल का कैलकुलेशन बताएंगे तो लमसम 5 बिलियन यूरोस, लमसम 5 बिलियन यूरोस, इतना ही ट्रांजेक्शन बना हुआ है। ये चीज को समझ रहे, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन आज अगर हम बात करेंगे, सालों साल पीछे अगर मुड़ के हम देखेंगे, तो हम अगर शेयर मार्केट में आप देखेंगे तो ट्रिलियन बिलियन में मार्केट चलता है, दिन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम फॉरेस्ट में हम जाते हैं तो वहां पे भी बिलियन ट्रिलियन में मार्केट चलता है, दिन का चलता है। तो ये मार्केट के सामने हमारा मार्केट या हमारी कंपनी का जो काम बना है मार्केट में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। ये चीज को आपको समझना है। हम उसको बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा उसको बोल रहे अलेक्स सर का तरफ से बहुत बड़ा मार्केट खराब हो रहा है, या लीडर की तरफ से बहुत बड़ा मार्केट खराब हो रहा है। तो अगर इस चीज को हम बात करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। ये चीज को आपको सबको समझना है। हमने जो भी मार्केट अगले सर के माध्यम से, हमारे कम्युनिटी के माध्यम से जो भी बिजनेस बनाए, जो भी बनाए, वो अगर बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने रिवर्स में इनकम के माध्यम से बहुत सारा पैसा ऑलरेडी अपने किसी न किसी के पास चला गया है। और जो भी लॉस हुआ है, जो भी मार्केट अगर लूज हुआ है, तो ओपन मार्केट में हमारे लोगों की वजह से हुआ है, ना कि कंपनी की तरफ से हुआ है, ना कि वो पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, ना कि कोई लीडर के पास पड़ा हुआ है। इस चीज को आपको समझना है। तो इसी हिसाब से ये सब होने के बावजूद भी कंपनी की जगह पे, सब जगह पे सही होने के बावजूद भी कंपनी ने अपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, अच्छे, जैसा आशीष सर ने अभी बताया, का उन्होंने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी बना के दिया, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा पूरा मार्केट जो लूज हुआ है, हमारा पूरा मार्केट जो अभी पैनिक सिचुएशन में चल रहा है, उनको बाहर निकालने के लिए अपना स्मार्ट कॉइन देके कंपनी उसको बाहर निकाल रही है। ऐसा अगर बात देखा जाए तो उसको स्मार्ट कॉइन देने की कोई जरूरत नहीं है। ना स्मार्ट ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉइन कंपनी नया अंदाज से स्टार्ट कर सकती है और पूरे नए लोगों को दे सकती है, पूरा नए लोग उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इतना बड़ा नुकसान करके मिस्टर अलेक्स सर और कंपनी हम लोगों को, अपने पूरे कम्युनिटी की बात करेंगे, 140 कंट्री के जो भी लोग हैं, उनको स्मार्ट कॉइन देके उनको बाहर निकाल रही है। ये चीज को समझना, और वो आपको फ्री में दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें कंपनी की तरफ से कोई भी लेन देन बाकी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमने जो भी कंपनी को दिया वो टेक्नोलॉजी के लिए पैसा दिया है, और वो कंपनी वाले अपने को टेक्नोलॉजी दे चुके हैं, और उसका फायदा, उसका मुबादला हम लोगों ने सबने ले भी चुके हैं और ले भी रहे, क्योंकि उसको कॉइन को मल्टीप्लाई कर रहे। तो उस टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी के पास कोई भी हमारा पेशेंस यानी बैलेंस नहीं है, या कंपनी कोई भी हमारा बैलेंस नहीं रख रही है। इस चीज को समझना है। लेकिन जो मार्केट से तकलीफ हो रही है, मार्केट में जो प्रॉब्लम हुआ है, उसको कंपनी बाहर निकालने के लिए, लोगों को बाहर निकालने के लिए, हमारी कम्युनिटी को कंटिन्यू हमारे साथ रखने के लिए, सिर्फ इतना बड़ा नुकसान कंपनी खुद झेल रही है। अगर हम आने वाले समय में, जैसे आशीष सर ने आपने को बताया, इसका कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कितना बड़ा यहाँ पे पैसा जनरेट हो सकता है, ये पूरा पैसा मिस्टर अलेक्स सर का है या कंपनी का, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ये पूरा पैसा मिस्टर अलेक्स सर या कंपनी हम लोगों के बीच में लेन देन कर रही है। ये चीज को समझना है। तो कभी भी एक मिक्स नहीं करना है, हमारा ये नया लेके आ रहे हैं, नया मार्केट में लेके आ रहे हैं, इसलिए पुराना नुकसान करे। पुराना और नए का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पुराना जो भी है उसके लिए कंपनी की तरफ से सब पिक्चर क्लियर हो चुका है। लेकिन कंपनी हम कम्युनिटी को साथ में रखना चाहती है, उसके वजह से इतना बड़ा रिस्क लेके, इतना बड़ा नुकसान करके हम लोगों को अपना स्मार्ट कॉइन के माध्यम से बाहर निकलने का मौका दे रही है। ये चीज को समझना है। और उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, क्या होगा, ये हम अभी सब चीज देखा है। बहुत कुछ हो सकता है उस चीज के अंदर, लेकिन किसी का नुकसान नहीं बनेगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारे साथ जो सिस्टम के साथ जो भी लोग जुड़े, कंपनी के साथ जो भी लोग जुड़े, उनके लिए कंपनी ने जो भी रास्ता निकाला है वो दुनिया का नंबर 1 का रास्ता रहेगा। क्योंकि वो ब्लॉकचेन, किसी के पास नहीं ऐसी ब्लॉकचेन अपनी कंपनी लेके आ चुकी है जो टेक्निकल अगर बात करेंगे तो जो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे रहेगी। और साथ साथ उसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट है। इस चीज को समझ, जैसा हमारा अल्टीमा टोकन, ये स्मार्ट कॉइन का एक प्रोजेक्ट है, इसको समझना है। ये दोनों चीज एक नहीं है, लेकिन स्मार्ट कॉइन के साथ इसको कनेक्ट करेगी तो ताकि वहां पे ट्रांजेक्शन बनेगा, तो अपने लिए लोग बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्मार्ट कॉइन ये अलग पार्ट है, अल्टीमा टोकन ये अलग पार्ट है। तो अल्टीमा टोकन ये वहां पे एक प्रोजेक्ट है, ऐसे मल्टीप्लाई प्रोजेक्ट वहां पे अपने स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ काम करेंगे, और उसके वजह से स्मार्ट कॉइन जो है उसका यूटिलाइज बढ़ेगा, और उसके वजह से हम लोग आसानी से एक अच्छे लेवल पे, यानी सिर्फ हम कैपिटल लेके बाहर नहीं जा रहे, ये चीज को पहले समझना है। हम सिर्फ कैपिटल लेके बाहर नहीं जा रहे। तो हमने जैसे आशीष सर ने अभी समझाया, फिर वापस आपको, एक कॉइन का हम 6 कॉइन, 7 कॉइन, 8 कॉइन जो भी बनाए, उस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, उस मल्टीप्लिकेशन के कैलकुलेशन के हिसाब से
हम स्मार्ट कॉइन में बाहर निकल रहे, और उसके साथ साथ अगर स्मार्ट कॉइन का रेट छोटा सा भी अगर प्लस माइनस हो जाता है तो हम उसमें भी पार्टिसिपेशन करने का बहुत बड़ा मौका हमको मिलने वाला है। वो कुछ भी हो जा सकता है, जैसा उन्होंने बताया, जैसा 0.10 सेंट, तो वो 0.12 सेंट भी हो सकता है, 0.14 सेंट भी हो सकता है, या 0.20 सेंट, या उससे आगे भी हो सकता है। तो जो भी रहेगा उस रेट से हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मिलने का मौका मिलेगा, यानी 6-7 गुना ऑलरेडी बना रहे, अगर वो मल्टीप्लाइड 2 गुना भी हो जाता है तो हम 14-15 गुना भी बना सकते हैं, या उससे ज्यादा भी बना सकते हैं। तो ये बड़ी पेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे बोलने की है का ये हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए सिर्फ ये नहीं कर रहे कि हमको कॉइन दे के कंपनी ये कर रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे है, हम पुराने हो या नए हो, या आने वाले समय हमारा मिंटिंग आने वाला है, हर मिंटिंग का जो भी हमारे पास कॉइन आया हुआ है, शुरू से लेके लास्ट तक हमको 0.10 सेंट से डॉलर में ये हमारा कॉइन का वैल्यूएशन के हिसाब से हमको कॉइन मिलने वाला है। यानी किसी के पास अगर आज कॉइन है तो उसको भी 0.10 सेंट से मिलेगा, किसी के पास आने वाले 1 दिन के बाद, आने वाले 1 महीने के बाद, आने वाले 1 साल के बाद भी अगर कॉइन आ रहा है मिंटिंग होके, तो भी उसको भी कंपनी 0.10 सेंट से स्मार्ट कॉइन दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, ताकि वो टाइम पे कॉइन का रेट अगर माइनस भी चलेगा तो भी वही मिलेगा, अगर वो मल्टीप्लाई भी चलेगा तो भी आपको वही रेट मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। इसलिए हम आज भी अगर कोई अगर स्वैपिंग कर रहा है, स्वैप कर आने कॉइन, सॉरी, आज भी अगर हम फार्म ले रहे हैं और उसमें अगर कॉइन लोड कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, तो भी हम मल्टीप्लाई करके 12 महीने तक करने वाले, या आने वाले 8 महीने तक करने वाले, या आने वाले 10 महीने तक करने वाले, तो भी हमको 0.10 सेंट डॉलर से ही कॉइन मिलने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट को इस हिसाब से समझाना है, और इस हिसाब से आपको दिमाग में लेना है कि हम जो प्रोजेक्ट बनाया है वो पुराने लोगों को सबको बाहर निकालने के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए ये सिस्टम लेके आइए, जो अपना स्मार्ट कॉइन और स्मार्ट ब्लॉकचेन। ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, और फिर अब सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है, वो है हमारा जो अल्टीमा टोकन, जो नया प्रोजेक्ट कंपनी लेके आ चुके हैं नए सिस्टम के साथ, जैसा अल्टीमा टोकन और अल्टीमा फार्म, जो हमें आने वाले 10 तारीख को या आने वाले 7 तारीख को, आने वाले 7 तारीख को अल्टीमा फार्म स्टार्ट हो जाएंगे, और आने वाले 10 तारीख को हमारे जो अल्टीमा टोकन है उसका लॉन्चिंग हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट हो जाएगा। वो 2 लोगों के लिए रहेगा, पुराने लोग उसमें आएंगे, अच्छी बात है, नए आएंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए प्रोजेक्ट है, इस चीज को समझना है। पुराना अगर चाहते हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है, वो लोग जगह पे चुप बैठेंगे, तो भी उनका पैसा निकालने के लिए पहला प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर चुके हैं। उसके लिए ये प्रोजेक्ट में वो लोग आना चाहिए, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है, ये चीज को समझना है। या आपका पैसा निकालने के लिए इस प्रोजेक्ट में आना जरूरी है, ये भी जरूरी, यानी कंपलसरी नहीं है, ये चीज को पहले समझ के लेना है। यानी हमारा जो पुराने जितनी भी कम्युनिटी आज तक, मैं खुद क्यों ना हो, आप लोग क्यों ना हो, या कोई भी क्यों ना हो, उनको निकालने के लिए सिर्फ और कंपनी ने हमारा पहला प्रोजेक्ट है स्मार्ट कॉइन और स्मार्ट ब्लॉकचेन, इसको निकाला है। इस चीज को समझना है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना है, ना इस सिस्टम के साथ काम करना है। ये पहला अपने दिमाग में सबको क्लियर करना है। और सेकंड पार्ट जो है हमारा, जो जैसा स्मार्ट कॉइन के जो पहला प्रोजेक्ट है, उसी तरह हमारा अपना जो अल्टीमा टोकन है, ये सेकंड प्रोजेक्ट है हमारा, जो नए लोगों के लिए। उसके साथ मैं भी हो सकता है, मैं भले पुराना हूँ, लेकिन इस सिस्टम के लिए मैं नया हूँ, मेरा भी पहला दिन रहेगा, आपका भी पहला दिन रहेगा, सबका पहला दिन रहेगा, ये चीज को समझना है। यानी अल्टीमा टोकन ये हमारे सबके लिए पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे पुराना नहीं है, कोई भी यहाँ पे नया नहीं है, ये चीज को समझना है। लेकिन उसमें भी जैसा पुराने लोगों को बाहर निकालने के लिए स्मार्ट कॉइन और स्मार्ट ब्लॉकचेन बनाई, और उस तरह से कंपनी उसको बाहर निकाल रही है, उसी तरह सेकंड पार्ट में कंपनी इसमें सब जो आने वाला क्लाइंट है, कोई भी क्यों ना हो, वो नया रहेगा, पहला दिन रहेगा उसका, वो होगा हमारा पैसिव इनकम के लिए। लेकिन जैसा जो इन्वेस्टर थे, या जो हम लोगों ने पैसा लगाए थे जो टेक्नोलॉजी के साथ, उसको बाहर निकालने के लिए कंपनी अपना स्मार्ट ब्लॉकचेन बनाई और स्मार्ट कॉइन बनाया। उसी तरह यहाँ पे एक्टिव इनकम के लिए जो भी हमारे जैसे जो भी लोग है, कोई 1 साल से काम कर रहे हैं, 2 महीने से काम कर रहे हैं, या कोई 6 महीने से काम कर रहा है, या कोई 2 साल से, या 4 साल या 5 साल, या मेरे जैसा 6 साल से भी यहाँ पे काम करे। और उन लोगों के लिए कंपनी एक्टिव इनकम में क्या क्या है, हमारा पोजीशन वैसे का वैसा रखा है। हम अगर डायमंड है तो आप डायमंड ही रहेंगे, आप अगर ब्लू डायमंड है तो ब्लू डायमंड रहेंगे, आप अगर जेड है तो जेड रहेंगे, कोई प्लेटिनम डायमंड तो प्लेटिनम डायमंड रहेगा, कोई ब्लैक डायमंड तो ब्लैक डायमंड रहेगा, यानी पोजीशन वही रहेगा। ये अपना एक बेनिफिट करके दिया है। आपका टर्नओवर वही रहेगा, जो भी अपना टीम साइज है वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन काम करना है हर एक को पहले दिन से, ये चीज को समझना है, पहले दिन से। यानी जो भी हमारा 7 तारीख आएगा, 7 तारीख को हमारा अल्टीमा टोकन का फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगा, वो हमारे सबके लिए पहला दिन रहेगा और स्टार्टअप रहेगा। और वहां से हम स्टार्टअप कर सकते हैं, और वहां से हम फिर वापस जेड रैंक से लेके हमारा जो भी लेवल है, जी ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड तक, हम इसमें न्यू अचीवमेंट ले सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है।
और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 7 साल से जो भी गलतियां हुई है, भले वो कंपनी की तरफ से हो, अलेक्स सर की तरफ से हो, अपने लीडर की तरफ से हो या अपने कम्युनिटी की तरफ से हो, वो सब गलतियां कंपनी वहां से निकाल दिया है और उसके बाद इसको डिजाइन किया हुआ है। इसलिए इसकी एक सिंगल छोटी सी गलती भी कंपनी यहाँ पे नहीं रखी है। और यही कारण है सेकंड जो प्रोजेक्ट कंपनी का हमारा, जो 100% नए लोगों के लिए या पुराने लोगों के लिए, सबके लिए एक पहला दिन से काम करेगा और एक अच्छे लेवल पे काम करेगा जहाँ पे किसी का नुकसान नहीं बने। इस चीज को समझना है ना। यहाँ पे जितने जितने प्रॉब्लम थे वो सब शट आउट करके कंपनी यहाँ पे आ चुकी है, एज ए पैसिव इनकम के लिए भी, एज ए एक्टिव इनकम के लिए भी। तो पैसिव इनकम में जो भी कंपनी का हर अपना प्रोजेक्ट लेके आई और वो लोगों के हाथ में दिया, वही कंपनी की सबसे बड़ी गलती थी। जो प्रोजेक्ट था वो कंपनी लोगों के हाथ में दिया, वो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब लोग पेशेंस नहीं रख सकते। और यही गलती करने की वजह से ये टाइम पे सर ने पूरा प्रोजेक्ट अपने हाथ में रखा है, कंपनी के हाथ में रखा है। यानी उसमें जो पैरामीटर सिस्टम दिया हुआ है, तो सेलिंग प्रेशर जैसा रहेगा उसी हिसाब से वो प्रोजेक्ट काम करेगा। जैसा अगर वहां पे सेलिंग प्रेशर बढ़ते जाएगा तो 5%, 50% लॉकिंग, और अगर ज्यादा अगर पैनिक हो रहा है या ज्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है तो 100% यानी 10% में अगर कॉइन का रेट रिवर्स जा रहा है तो 100% वहां पे आपको लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। तो कोई अगर लोगों के हाथ में कॉइन ही नहीं रहेगा तो सेल करने के लिए कोई जाएगा ही नहीं, और सेल करने के लिए अगर ज्यादा कॉइन आएंगे ही नहीं तो हमारा कॉइन मार्केट में डाउन बनेगा ही नहीं। तो ये सब जो चीजें छोटी मोटी थी, अभी सब चीजें अभी यहाँ पे क्लियर करना अच्छा नहीं है क्योंकि टाइम बहुत चले जाएगा, तो मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे उसके वजह से हमारा कॉइन का रेट आपको अप होते हुए दिखेगा, डाउन होगा लेकिन छोटा सा 19-20, यानी ज्यादा से ज्यादा 10%, 5%, 10%, इससे ज्यादा नहीं। यानी अगर $10,000 पे कॉइन का रेट चल रहा है वो $9,500 या ज्यादा ज्यादा $9,000 यानी $9,000, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। एक तो $9,500 तक जाएगा हमारा फ्रीजिंग अमाउंट रहेगा, जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो 50% हो जाएगा। अगर वो 9,000 तक अगर रिवर्स आ जाता है यानी लो होता है $9,000 तक, तो 100% आपको फ्रीजिंग करना पड़ेगा। उसी तरह अगर कॉइन का रेट $11,000 चला जाएगा तो उसी हिसाब से 5%, 10%। अगर कॉइन का रेट $15,000 चला जाएगा तो उसी तरह 5%, 10%, यानी वहां पे लॉकिंग सिस्टम चलेगा, यहाँ पे ब्रेकअप रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा, कोई भी एक सिंगल पर्सन यहाँ पे अपना नुकसान नहीं कर पाएगा। इस चीज को समझना है। तो इतना स्ट्रांगनेस के हिसाब से अगर ये प्लेटफॉर्म रन किया हुआ है और उसके लिए भले आपका छोटा पैसा लगा हो या आपका बड़ा पैसा लगा है, तो भी यहाँ पे आपको विड्रॉल के लिए सबके लिए एक ही कंडीशन रखा हुआ, 1% डेली। आपका वॉलेट में जितना भी बैलेंस रहेगा उसका 1% डेली आपको विड्रॉल करना क्यों मिलेगा, इस हिसाब से वो काम करेगा। और अपना फार्मिंग जो है वो अभी जो बना हुआ है वो 24 महीने का बना हुआ है, तो 60%, 40%, यानी जो भी हमारा इनकम आ रहा है उसमें से 40% हमारा जाएगा हमारा जो फार्मिंग परचेसिंग के लिए। खुद का फार्मिंग हम उसमें परचेस कर सकते हैं, ना उसको हम सेल कर सकते हैं, ना उसका हम एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। खुद का फार्मिंग, दूसरे का भी फार्मिंग उसको अपलोड यानी परचेसिंग नहीं कर सकते, खुद का ही करना पड़ेगा। और 60% है उसका 1% जो अपना डेली हिसाब से विड्रॉल करते जाएंगे। तो ये हिसाब से जो कैलकुलेशन सब जगह पे बनाया है, उसी हिसाब से कोई भी हमारा यहाँ पे पैसिव इनकम के लिए अगर कोई एंट्री कर रहा है तो सिंगल पर्सन का भी लास्ट तक कभी भी यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला है। और यही कारण आने वाले एक दिन के बाद, आने वाले एक हफ्ते के बाद, आने वाले एक महीने के बाद, आने वाले 2 महीने 3 महीने के बाद ये प्रोजेक्ट इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मिलने वाला है, पूरी दुनिया इसके पीछे आने वाली है। और यहाँ पे हम जो सोच रहे उससे कई गुना यहाँ पे बिजनेस, बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। और पूरे दुनिया में इसके जैसा प्लेटफॉर्म, इस कंपनी के जैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं रहेगा। इतना श्योरिटी के साथ अपनी कंपनी देना चाह रही है। सब चीजें जो भी गलतियां हुई है उसको निकलती हुई कंपनी अपना लेके आ चुकी है। इसके वजह से हम जो आज बहुत सारे नेगेटिव लोग मार्केट में हमारे कंपनी के लिए सोच रहे, हमारे लीडर के लिए सोच रहे, या हमारे खुद के लिए सोच रहे, या अलेक्स सर के लिए खुद सोच रहे, लेकिन वो लोग जैसा अलेक्स सर ने बोला है, जो भी लोग अगर आपको गलत बोल रहे उनका एक पन्ने पे लिस्ट लगा के रखना, क्योंकि आने वाले दिन में ये लोगों का फिर वापस बोल सकते अभी कहा गया आपका टाइम, अब आया है हमारा टाइम। इस चीज को समझना है, इतना ही बोलना है और इस सिस्टम के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि कंपनी के कैलकुलेशन के हिसाब से आने वाले दिन में ये जो कंपनी आने वाले 1 साल का बात करेंगे, ये प्लेटफॉर्म के साथ लगभग 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, आने वाले 2 साल के अंदर 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक कम्युनिटी इस सिस्टम के साथ जुड़ने वाली है। तो आप समझ सकते हैं, हम रहेंगे तो हमारे साथ आएगी, हम नहीं रहेंगे तो किसी और के साथ जाएगी। लेकिन 100% यहाँ पे 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक कम्युनिटी पूरी इंडिया वर्ल्ड की हिसाब से अगर बात करेंगे तो इस सिस्टम के साथ जुड़ने वाली है। और उसमें कंपनी की तरफ से अलेक्स सर का जो लक्ष्य, हमारे इंडिया के लिए स्पेशली बात करूंगा, 1 करोड़ से ज्यादा कम्युनिटी यहाँ पे
इंडिया से आने वाली, 1 करोड़ से भी ज्यादा। इस चीज को समझना। अभी हमारी कम्युनिटी कितनी है, 5-6 लाख लगभग कम्युनिटी अपनी इंडिया से, लेकिन अभी 1 करोड़ से ज्यादा कम्युनिटी अगर आने वाली 1 साल में, आने वाले 2 साल के अंदर अगर अपनी इंडिया से आने वाली है, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन और कितना बड़ा पार्ट यहाँ पे बनने जा रहा है। तो इसीलिए हमको सिर्फ यहाँ पे जुड़े रहना है। हम सिर्फ जुड़े भी रहेंगे तो भी हमारे साथ लोग आएंगे, और इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, जिस तरह हमारी मीटिंग्स हो रही है, जिस तरह हमारे लोग आपको गाइड कर रहे हैं, सिर्फ वो गाइडलाइन आपको लेना है और उसको आगे फॉरवर्ड करना है। और ऐसे करते हुए आपको यहाँ पे मिलियन में, बिलियन में पैसा बनने का मौका मिलने वाला है। इस चीज को समझना और आगे बढ़ना है। तो ये हो गया हमारा पैसिव इनकम के लिए। एक्टिव इनकम के लिए सर ने जो बताया, जिस हिसाब से बताया का, जो लास्ट ईयर में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट हमारे पूरे कम्युनिटी के बीच में रेफरल इनकम के माध्यम से रिटर्न आया हुआ है। तो इतना बड़ा बिजनेस यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। अभी ये टाइम पे ये पर मंथ होने वाला है, पर मंथ, यानी पर मंथ 10,000 करोड़ प्लस अमाउंट। इंडियन करेंसी में बात करें हम लोग, जितना अमाउंट हमारे पूरे और वर्ल्ड की कम्युनिटी, जितना लोग अपने एक्टिव इनकम में काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में पर मंथ जाने वाला है। शायद पहले महीने थोड़ा कम होगा, उससे पहले दूसरे महीने थोड़ा और कम होगा, लेकिन जैसा भी ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आने वाले 2 महीने के बाद, आने वाले 3 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 10 करोड़ से भी ज्यादा पर मंथ इनकम, रेफरल इनकम में रिटर्न आ रहा है। ये चीज को समझना है। तो ये लेने के लिए हम यहाँ पे रहना जरूरी है, हम इसके साथ रहना जरूरी है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके लिए कंपनी बहुत सारा अच्छा डिजाइन किया हुआ है। जैसा 3rd रैंक अपना ओवर स्टार्टअप करना है, पहले रैंक से लेके लास्ट रैंक तक जो भी आपको आपकी अचीवमेंट है, वो आपको यहाँ पे फिर वापस डॉलर यूरो में लेने के कंपनी चांस दे रही है। उसके साथ साथ बहुत अलग अलग कंपनी की तरफ से बहुत सारे प्रमोशंस अपने बीच में आने वाले, जहां से हम बहुत सारे यहाँ पे अर्निंग करेंगे, बहुत सारा यहाँ पे पैसा जनरेट करेंगे। और यहाँ पे हम, हमारा जो भी सपना है, हमारा फैमिली का जो भी सपना है, हमारे कम्युनिटी का जो भी सपना है, वो हर सपना इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आने वाले 1 साल में, आने वाले 2 साल में, आने वाले 3 साल के अंदर हम यहाँ पे 100% अचीव करने वाले। इतना ही मैं यहाँ पे बोलता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपने पूरी कम्युनिटी को आपने गाइडलाइन दिया, और साथ ही साथ आप हर समय बताते हैं कब क्या करना है, कैसे करना है, और वही पूरा कम्युनिटी और पूरा टीम डायमंड फैमिली फॉलो कर रही है सर। पूरा कम्युनिटी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे बीच में ब्लैक डायमंड मिस्टर अली पटेल सर हैं, जो पूरे कम्युनिटी को किस जो जोश में ना हो और अपना जोश खो गया हो या हिम्मत हार गया हो, तो हारे हुए को भी दौड़ाने में सर माहिर हैं, और काफी साल का सर को एक्सपीरियंस है। तो आप सब लोग भी जोरदार तालियों के बीच में मैं कॉल करता हूँ मिस्टर अली पटेल सर को। मोस्ट वेलकम अली पटेल सर। सलमान जी हैंड रेस मत करिए, अभी हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है। मोस्ट वेलकम सर। यस सर, यस सर। पवन जी, मेरा साउंड आ रहा है? जी जी सर, आ रहा है सर। यस यस यस। सभी को मेरा नमस्कार। आज का मीटिंग बहुत अच्छा हो गया। मयूर सर ने शुरुआत की थी। मयूर सर ने जो उनका अधूरा टॉपिक था वो पूरा आज किया है, और उसके बाद आशीष वानखेड़े सर ने जो भी हमको बताना चाहिए था, हमको जो नॉलेज चाहिए था, वो नॉलेज आशीष सर के माध्यम से आज बहुत अच्छा मिला है। और उसके बाद उपाध्याय सर ने तो बाद में फिर उसको ये 4 चौके लगा दिए। तो बोलने का मतलब आज का मीटिंग बहुत अच्छा होगा। मीटिंग आज दोपहर का मीटिंग, शाम में मीटिंग तो नहीं है, लेकिन सभी जितने भी लीडर मुझे सुन रहे हैं या जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, तो उनसे मेरी एक ही विनती है कि दोस्तों, मेरे को आज लगभग 35 महीना पूरा होगा। इस अप्रैल महीने के एंडिंग में मेरे को 3 साल पूरा हो जाएंगे इस सिस्टम में मैं जुड़ा हूँ। तो मैं काफी सारे लीडर को ये देख रहा हूँ कि जैसा लहर आती है, उस लहर के तरह वो हलचल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लीडर को देख रहा हूँ, इधर से उधर कूदी मार रहे, उधर से उधर कूदी मार रहे। मतलब अलग अलग कंपनी का भी प्रमोशन, कुछ अपने पीएलसी के माध्यम से कुछ लीडर भी कर रहे। तो उनको मैं एक अनुभव, एक्सपीरियंस बड़ा होने के नाते या बड़ा भाई होने के नाते, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पिछले 35 महीने में जितने भी झूम मीटिंग अभी तक हो गए, ऐसा एक झूम मीटिंग नहीं है कि जिस झूम मीटिंग में अली पटेल नाम नहीं है। मैं कंटिन्यू, लगातार, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट आज मीटिंग कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, काफी सारी चीजें को समझ रहा हूँ। तो लोगों को मैं एक ही बात बोलता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ समझो, सीखो, क्योंकि बहुत बड़ा समय आने शुरू होने जा रहा है। 7 तारीख के बाद, जैसा उपाध्याय सर बोले कि 10 तारीख के बाद जो तहलका होने वाला है, और अलेक्स सर ने भी बीच में बताया कि ये जो अल्टीमा के माध्यम से लोगों को जो बेनिफिट मिला, वो खाना खाने के बाद जैसा टिप दिया जैसा होता है। तो एक्चुअली खाना तो अभी परोसना बाकी है 7 तारीख के बाद और 10 तारीख के बाद। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, संयम रखिए, पेशेंस रखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी फील्ड में जाओ, आपके पास पेशेंस और एजुकेशन होना बहुत मायने रखता है।
कामयाबी अगर एक दिन में आती है तो कामयाबी हमने भी देखी है, एक एक दिन में हमने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी देखी है। जो नहीं देखना है हमने वो भी देखा है, चढ़ाव उतार देखा है हमने जीवन में, बहुत कुछ देखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टिके रहना बहुत जरूरी है। मैं क्रिप्टो में 35 साल के अनुभव के बाद एक चीज को मैं यहाँ पे आज दोबारा मेंशन कर रहा हूँ कि आपके पास एजुकेशन होना, मतलब आप डेली जूम मीटिंग पे आना, आपके जो भी अपलाइन, जो भी एक्टिव अपलाइन है, आप जिसको भी कुछ लगता है, जैसा मुझे कुछ दिक्कत आती तो मैं डायरेक्टली उपाध्याय सर रात के 1 बजे भी फोन करके सवाल का जवाब ले। तो आप आपके एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहिए, सिस्टम में रहिए, रोज वेबिनार में आइए और जानकारी लीजिए। आने वाला समय ये तुम्हारा हमारा रहेगा, इतना मैं वादा कर रहा हूँ। और आने वाले समय में हम लोग इतिहास के बहुत करीब है, तो थोड़े समय के लिए आप कोई चीज को मिस मत करिए। मैं क्यों एक बात क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लीडर को मैं अलग अलग कंपनी में जाते हुए देख रहा हूँ, ये बुरा लगता है मुझे। कुछ डायमंड भी है, कुछ ब्लू डायमंड भी है और कुछ ग्रीन डायमंड भी है, जिनका नाम मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं। किसी का मैं वो बोलते ना, किसी के बारे में गलत बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। तो मैं सबको विनती कर रहा हूँ कि दोस्तों बहुत बड़ा चांस हाथ से जाएगा। अलेक्स सर ने हमको बोला है, जैसा हम 4 मार्च के फंक्शन में गए थे और फंक्शन के बाद हम लोगों ने 5-6 दिन वेट किया था अलेक्स सर को पर्सनल मिलने के लिए, तब उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई है कि आने वाले समय में हमारी कम्युनिटी कितना काम करेगी, कितना आगे बढ़ेगी, हमारे डायमंड रहेंगे, ब्लू डायमंड रहेंगे, ब्लैक डायमंड रहेंगे या प्लैटिनम डायमंड उसको प्रमोट करेंगे, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, ये जो प्रोजेक्ट है अल्टीमा का, जो बेनिफिट है, जो स्मार्ट कॉइन के माध्यम से अलग अलग टेक्नोलॉजी कंपनी चालू करने जा रही है, प्रोजेक्ट चालू करने जा रही है, इसको देखने के बाद वर्ल्ड के बाकी सारे कंपनी के डायमंड भी यहाँ पे आने में 3 साल या 6 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर मतलब आएंगे और बहुत बड़ा कारवा यहाँ पे बढ़ेगा। जैसा अभी उपाध्याय सर ने बोले कि आने वाले 2 साल में 5 से 10 करोड़ कम्युनिटी बनेगी। तो यहाँ पे हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि यार हमारे टीम में भी 1000, 2000, 5000, 50,000, 1 लाख लोगों का हमारा भी कम्युनिटी हो, हम भी डायमंड हो, ब्लैक डायमंड हो, प्लैटिनम डायमंड हो। और मैं यह चाहता हूं कि जितने भी लोग आज मुझे जूम मीटिंग पे सुन रहे हैं, ये सभी लोग अगर अल्टीमा के साथ में, ये टोकन के साथ में स्मार्ट कॉइन को अगर समझ के लेंगे, तो दोस्तों ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, इस साल के आखिर तक, आज साल के दिसंबर तक सभी ब्लैक डायमंड बनेंगे। मैं इतना ही कहता हूं और आज मेरी वाणी को यहाँ पे विराम करता हूं। जय हिंद, जय पीएलसी। थैंक यू सो मच दादा, आपने बहुत अच्छी बात की। और वाकई में जो आपने बोला है, नेवर गिव अप, यानी विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी विजेता बनते नहीं है दादा। यस यस, जो तकलीफ सहन करेगा, जो मैं बता रहा हूँ ना, जिसको तकलीफ होगी वो बहुत बड़ा बनेगा, ये मेरा अनुभव है। तकलीफ मिलने के बाद ही देखो, जब देखो दुख तो हर एक को आता है, दुख के बाद सुख भी आता है। वो हमेशा बोला जाता है कि वो डर के आगे जीत है, ये तो कहावत है। लेकिन प्रैक्टिकल अभी हमें करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जो भी लोग इस चीज को इग्नोर करेंगे, जो भी लोग इस चीज से दूर जाएंगे, आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने में पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस चीज को मिस मत करिए। क्यों? क्योंकि मैं अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ। और जितने भी लोग जूम मीटिंग पे आ रहे हैं, अपना नाम लिखो सही तरीके से। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आशीष सर जब लिखकर बताने लगे तो कुछ लोगों ने लिखना चालू किया। भाई अगर लिखना ही है तो आपके तकदीर के बारे में लिखो, इतना यहाँ पे मत लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बुरा लगता है कि इतना बड़ा टीम होने के बावजूद भी आज इन 850-900 लोगों के आसपास लोग इकट्ठा हो गए थे। तो हो सकता है 1-2 दिन में 1000 लोगों की भी भर्ती हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पवन जी आप कंटिन्यू करिए। मेरा यही एक मैसेज था कि लीडर लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। जी दादा, जी दादा, बहुत बहुत